Hi everyone, welcome to Go Classes. So in this session we have Priyanshu Sharma with us, who is All India Rank 2. So this is basically a mentorship session, a guidance session by Priyanshu Sharma, All India Rank 2 in GATE Computer Science 2024. And so before we start, I want to welcome Priyanshu. So Priyanshu, welcome and thank you for joining us for this session. Thank you, sir. So Priyanshu, can you please introduce yourself? Hello guys, my name is Pranit Sharma, and I achieved AIR 1, AIR 2 in GATE CSA 2024 and AIR 130 in GATE 2024 DA. And previously, I achieved AIR 139 in GATE 2023 CS. So I have quite a lot expertise in this field, I think. So Priyanshu is All India Rank 2 this year in GATE Computer Science, and also in GATE DA he is All India Rank 130. And last year in 2023 GATE Computer Science he is All India Rank 139. So he has a lot of experience of GATE Computer Science. Also you can ask him how to manage preparation of GATE Computer Science and GATE DA. Okay, so basically related to GATE DA also he can guide you all the doubts, whichever doubt you want to ask, okay, related to GATE preparation, GATE computer science, GATE DA preparation, you can ask to Priyanshu. Okay, so let me also tell you that I think Priyanshu has joined ISC Bangalore this year. IIT Madras. IIT वो Madras. सर Okay. नाम चेंज नहीं हो पा रहा. अच्छा, नाम चेंज नहीं हो रहा हो क्या? आपने नाम के अंदर IISc बैंगलोर लिख दिया तो मुझे लगा कि आपने वो. ओके, कोई नहीं, वी विल चेंज इट. सो यू हैव टेकन IIT मद्रास दिस ईयर. Yes, sir. Okay, excellent. So uh, let me tell you about some things about Priyanshu. That Priyanshu is also sharing his basically guidance with you in form of shorts. You can see. Okay, maybe you have already seen these shorts on the Go Classes YouTube channel. You can find this short where basically Priyanshu is talking about when to solve GATE PYQs. Okay, so this video you can watch. Also, you can see this is another suggestion or another tip from Priyanshu. Okay, so this is basically related to how tough is the GATE exam, how tough is the GATE computer science exam. Okay, so you can watch this also. Okay, so these shorts you can find on the Go Classes YouTube channel. Okay, so Priyanshu has created these shorts, and also you can read Priyanshu's Quora article. Okay, so you can see on the Quora also. This is on the Quora. Okay, you can read this article also. So you can see these are the achievements of Priyanshu. You can see All India Rank 2 in GATE Computer Science 2024, All India Rank 130 in GATE DA 2024, and All India Rank 139 in GATE CS 2023. So this link also I will provide you in the description so you can check it out and you can read this core article by the Priyanshu. Okay. Also, Priyanshu has joined Go Classes 2024 felicitation. So before we move with this video, let me tell you that Priyanshu was Go Classes test series student and free courses student. Okay, so in his Priyanshu has written about it in his core article also. You can read about it. So he's Go Classes test series and free courses student. Okay, so Priyanshu joined Go Classes 2024 felicitation event also. You can see this beautiful photo. Okay, so I'm here, Sachin sir is here, Sachin Mittal sir, and Priyanshu is here. Okay, so and also you can see this photo here. All the students, all the toppers, they are having some fun. It was DJ night basically. Okay, this is Karan Agarwal, All India rank 102. Okay, so this is Piyush, All India rank 1. All India rank 1 Piyush, and this is our Priyanshu. And so basically, this is Mohan from IIT Kanpur. He joined felicitation session as a mentor. Okay, so you can see this was basically a DJ night, and all the students, they are basically dancing. And this is Piyush Tayal from IIT Roorkee. Okay, so he also joined this felicitation as a mentor. Okay, to guide all the students. And this is another photo. This is my favorite photo. And here you can see All India Rank 1, Piyush, All India Rank 2, Priyanshu. And let me tell you that Go Classes is very proud that Piyush, All India Rank 1, he is Go Classes complete course enrolled student, and Priyanshu is Go Classes test series and free courses student. Okay, so basically All India Rank 1, All India Rank 2, both are associated with Go Classes. Okay, so this is another very proud moment for Go Classes, and next year we are expecting similar type of achievement from you.
Okay, from all of you, we are basically we are expecting that some of you, maybe one of you, or maybe Priyanshu, there can be multiple fast ranker. Okay, so Hmm. so maybe you can become first ranker, second ranker, top 100 ranker. Okay, so next year you should become a topper. Okay. Hmm. Okay, now we will basically, this session will be about your doubt and Priyanshu's reply. Okay, I have given the introduction about Priyanshu. Okay, that is from my side. Now this rest of this session, the remaining session will be, you will ask your doubts. So please ask all your doubts, okay, to Priyanshu, and Priyanshu will answer your doubts. So Priyanshu, you can, before starting the session, if you want to address them, if you want to say something, then you can please address them. And after that, in the chat, students are asking doubts. You can one by one, you can take all the doubts and you can answer them. Okay. Hello guys. So you can all be really frank in this session. You can ask literally anything. मतलब कुछ भी डाउट्स हो, को क्लासेस के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी, तो आप पूछ सकते हो। मतलब ऑनेस्ट रिप्लाई होगा। So Uh, Priyanshu, students are asking some doubts in the hmm, chat. You can see, and you can answer one by one, whichever doubt you want to take first, you can take. See, a lot of doubts are coming back to back, so you can start with any of them. okay. So first question is why IIT Madras over others? तो ऐसा था कि लास्ट ईयर में आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था, एंड कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैंने देखे थे हर कॉलेजेस के, तो उसमें मेरे को आईआईटी मद्रास ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आईएससी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को, मेरा रीज़न ये था, मतलब मेरा रीज़न है पर्सनल, कि मेरे को आईआईटी का टैग चाहिए था, तो इसलिए आईआईटी मद्रास। एंड मेरे को इंटर्नशिप भी चाहिए थी फर्स्ट ईयर में, तो आईआईटी बॉम्बे में नहीं थी, तो ये भी रीज़न है। एंड एक सेमेस्टर में आईआईटी बॉम्बे में रह चुका हूँ, तो नया कॉलेज भी एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा, इसलिए मतलब वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न यही है आईआईटी मद्रास। Priyanshu, if एंड you want to share your screen, you can do that if you want. Okay, so let me stop sharing. यस सर। Yes, Priyanshu, you can share your screen. So Aditya is asking revision strategy and how and when to make short notes, and from where to prepare for aptitude, until when should we complete the course and start the mock test. बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी मेरी थी कि, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि सैटरडे संडे रिवीजन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को जब टाइम मिलता था कि यार ज्यादा पढ़ लिया है सब्जेक्ट को, चलो रिवीजन करते हैं, मतलब रिवीजन मेरा एक तरह से कंफर्ट टॉपिक था कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते या फिर क्वेश्चंस नहीं करना, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरे लिए बहुत रैंडम चीज थी वो, कोई ऐसा मेरे लिए फिक्स नहीं था। एंड कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोई सा एक टाइम पे रिवीजन करना ही करना ही है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पर वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए स्वीट स्पॉट क्या है रिवीजन के लिए। तो मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। एंड मतलब टाइम मिलता था तो मैं कर लेता था, एंड मतलब मिलता था टाइम बीच बीच में, तो मेरा ये था। एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे को कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना था। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने कभी लाइफ में एप्टीट्यूड पढ़ा हो, शायद टेंथ में आपने क्या बोलते हैं, एक एग्जाम होती है वो दी होगी, तो आपने कभी एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, उसके लिए आपने तैयारी करी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग गेट में इतना हार्ड लेवल का एप्टीट्यूड पूछते नहीं है, कैट लेवल का, तो मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी एप्टीट्यूड ज्यादा पढ़ने की। एंड आई थिंक अगर आपको पढ़ना है तो आप लास्ट ईयर के मॉक्स, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के। इट्स मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप कोर सब्जेक्ट से ज्यादा ध्यान दो। एप्टीट्यूड मैंने देखा है कि लोग पढ़ते इसलिए क्योंकि उनको कोर सब्जेक्ट से भागना रहता है, उनको इच्छा नहीं होती पढ़ने की, तो एप्टीट्यूड उठा लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मत करना। एंड टाइम मिले और आपने कभी एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं हो, तो हाँ तब आप पढ़ सकते हो। एंड गेट में इतना एप्टीट्यूड का हार्ड लेवल का आता नहीं है।
और कोर्स मैंने लास्ट ईयर बता देता हूँ, मैंने कोर्स दिसंबर एंड में मैंने खत्म किया था। बहुत टाइम हो गया था, मतलब मेरे लिटरली फ्रेंड्स ने सितंबर अक्टूबर में खत्म कर लिया था, पर मैं दिसंबर एंड में हुआ था। तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि यार नवंबर तक खत्म करना, अक्टूबर तक खत्म करना है। मतलब हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर नहीं भी हो तो वरी वरी करने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा आराम से। जनवरी में टाइम मिलता है तो उसमें आप मॉक टेस्ट एंड रिवीजन साथ में कर सकते हो। अ, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो यस, रिवीजन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना, बढ़िया है। What do you think you did extra comparing to other aspirants to achieve such a rank? Okay, आई थिंक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कंसेप्ट शायद अच्छे से क्लियर थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करे थे। हो सकता है मेरे को इस बार का बता रहा हूँ मैं, मेरे को खुद पे मतलब कॉन्फिडेंस था ज्यादा कि इस बार तो मेरी 100 अंडर 100 आएगी ही। मतलब मोस्ट ऑफ द अंडर 100 टॉप रैंकर्स को पता रहता है कि उनकी टॉप 100 में आती है रैंक, आ जाएगी, ऐसा उनको पता रहता है। ये मेरे को भी पता था। एंड मतलब मेरे पास बैकअप भी था एक्चुअली कि मेरी 139 रैंक है पिछले लास्ट ईयर। तो इस बार मैंने एग्जाम में ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी। तो मेरा भी सजेशन ये रहा कि अगर एग्जाम में जाओ ना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमेशा ऐसा सोचना है कि यार नेक्स्ट ईयर दे देंगे, कुछ बिगड़ जाए तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती आपकी लाइफ, मतलब माइंड में। फिर I'm very new to group classes. Like yesterday, would I be able to finish everything if I start now? यार डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में हूँ। मतलब इट्स नेवर लेट, कभी नहीं। मतलब मैंने देखा है कि 6 महीने में लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करा है पूरा। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डेडिकेशन है। मतलब तो एक बार बता देना कि आप कौन सी ईयर में हो। डिड यू टुक हेल्प सिद्धार्थ पूछा कि डिड यू टुक हेल्प फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स फॉर प्रैक्टिसिंग न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सिद्धार्थ नहीं यार, मतलब मैंने तो कोई स्टैंडर्ड बुक्स ऐसा रिफर करी नहीं थी, क्योंकि अगर आप बुक क्लासेस स्टूडेंट हो तो मैं बोलूँगा कि कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि बुक्स का मटेरियल सब कवर हो ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको, आपने बुक्स पढ़ ली पूरी, चलो ओएस की आपने एक बुक खत्म कर दी, तो आपको लगेगा कि आपने सिर्फ एक दो कंसेप्ट के होंगे जो ज़्यादा सीखे होंगे पूरी बुक खत्म करके। तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि क्वेश्चन ज्यादा करने को मिल जाएंगे बुक से, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से कवर्ड हो चुके हैं बुक्स के। मतलब लिटरली कवर्ड, कोई सेंस नहीं है। और सिंपली सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस देखो और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक्स मत पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप, हाँ अगर आपको बस आपको इंटरेस्ट हो तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग सब कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हाउ मच टाइम पर डे यू गिव टू लर्निंग टॉपिक्स एंड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अपने लास्ट ईयर का स्केड्यूल बता देता हूँ मेरा कितना मेस्ड अप स्केड्यूल था। मतलब मेस्ड अप नहीं, मतलब अ, मेरा कॉलेज होता था 10 से 5, 10 to 5 मेरा कॉलेज होता था, जो बहुत एक्टिव होता था। 75% अटेंडेंस कंपलसरी थी। तो मेरे पास अ, मैं आता था 6 बजे बैठता था और 6 से 12 बजे तक पढ़ता था। इतना सही, मतलब 3 घंटे लेक्चर्स और रेस्ट प्रैक्टिस। सुबह सुबह मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं 9 बजे तक सोता था। तो मतलब ये देख रहे हो कि मैं भी मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स ही तैयारी कर पाता था, क्योंकि मैं कॉलेज मेरा बहुत हेक्टिक था। एंड पर फिर भी मैंने जो 6 आवर्स थे ना, मैं बोल सकता हूँ मैंने बहुत इज्जत से पढ़ा है। मतलब मैंने बहुत रिस्पेक्ट दिए इन 6 आवर्स को।
तो जो भी बोलते हैं ना कि 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए तभी गेट क्लियर होगी, तो सबसे बड़ा मिथ तो वो है। मतलब दीपक सर ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, क्योंकि मेरे को काफी हिट हुआ था, क्योंकि उन्होंने मतलब बोला था कि अगर ऐसा होता कि 12 घंटे पढ़ने से गेट क्लियर होनी है तो सब लोग वही करते। एक तरह से वो फॉर्मूला बन जाता। तो ऐसा नहीं है ना, सब लोग गेट AI 1 तो नहीं आती ना। तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, अभी 6 आवर पढ़ता था, पर जब भी पढ़ता था ना, जो भी 6 आवर देता था वो काफी मतलब डिसिप्लिन में पढ़ता था। अ, तो मैं बोल सकता हूँ 3 आवर्स फॉर लेक्चर्स एंड 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस। तब तक मेरे सारे लेक्चर्स खत्म नहीं होते, उसके बाद मेरे पास वो 6 आवर्स टोटली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए बचता था। तो अनन्या पूछ रही है कि अनन्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मंथली स्केड्यूल एंड बाय व्हेन शुड वी कंप्लीट द सिलेबस आइडियली। आइडियली देखो, आइडियली मतलब मैं बोलूंगा कि आइडियली बोलूंगा, जरूरी नहीं है। अगर अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर देते हो तो काफी बढ़िया है। कोई आपके पास थोड़ा सा एज आ जाएगा दूसरे से, पर एज आने के बाद वो भी आपके ऊपर रहेगा कि कितने अच्छे से वो एज को यूटिलाइज कर पाओगे। मतलब मैंने देखा है, मेरे पास डाउट्स आते हैं लोगों की कि अक्टूबर तक खत्म करना ही है, खत्म करना ही है। तो वो जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना, मतलब कंसेप्ट स्किप मत कर देना। खत्म करना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रेड ऑफ कर दो, अपने कंसेप्ट को ट्रेड ऑफ करो। तो वैसा नहीं है, आप अपना टाइम लो, अपने हिसाब से टाइम लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मतलब आपको लंबा समय लगेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन लगेगा खत्म करने में, तो वो आपके लिए सही है, आप वही करो। आप किसी को देखते हुए अक्टूबर नवंबर खत्म मत करो। अगर आपकी आपकी कंसिस्टेंट स्पीड हो तो आप ट्राई करो कि थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो और अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर सकते हो। पर अगर नहीं भी हुआ तो बड़ी बात नहीं है, मेरा खुद मैंने बोल चुका हूँ कि दिसंबर एंड में हुआ था पिछले साल, फिर भी ये 139 आई थी। एंड 139 भी इसलिए नहीं आई, मतलब ये रीजन नहीं था कि दिसंबर में खत्म हुआ इसलिए मेरी कम रैंक आई, टू नहीं आई, वो अलग रीजन था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम स्टार्टिंग अ कोर्स टुडे, कैन आई कंप्लीट द सिलेबस इफ आई स्टार्ट स्टडिंग टुडे? अगेन अपना ईयर मेंशन करना। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन अ डे? देखो मतलब मेरे हिसाब से आपको खुद को पहले आइडेंटिफाई करना कि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, मतलब कि मतलब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या फिर आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, या फिर कम कंसेप्ट्स में ही आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। मतलब खुद को पहले आइडेंटिफाई करना। अगर आपको लग रहा है कि दूसरों से मैच करने के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और वो तभी आएगा जब आप लिटरली अपना आवर्स दोगे गेट के लिए। फिर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, कितना कम टाइम देना पड़ जाएगा दूसरे से कंप्लीट कंप्लीट करने के लिए। तो तब आप अपने आवर्स डिसाइड कर सकते हो कि इतने आवर्स मैं पढ़ सकता हूँ। तो यार अलग अलग रहता है सब लोगों का। मैं भी अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं पिछले साल 6 आवर्स पढ़ता था। इस साल शायद वो 8 आवर्स हो गया होगा। पर मेरे को उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। मतलब लिटरली मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है ना, मतलब इस साल भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा 12 घंटे। तो मतलब बाकी सबकी रैंकिंग मुझसे कम ही होगी। तो यही एक एग्जाम्पल है कि बिल्कुल सेंस नहीं है। सबका अलग अलग रहता है। हाँ, आपको पढ़ने की जरूरत हो सकती है 10-12 घंटे, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी दूसरों को देख के आप टाइमिंग्स सेट नहीं कर सकते, आपको पता होगा वो। हाउ डिड यू मैनेज कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? यार मतलब इट्स ऑल की आपको लाइफ में आपका गोल क्या है। मेरा पहले से एम था कि मेरे को IIT जाना है, मेरा मतलब 11 से ही मेरा एम था। मेरा जेई थोड़ा खराब हो गया था, तो मेरे को एक गेट ऐसा रे ऑफ होप मिली। तो मेरा वही था कि गेट नहीं तो अब कुछ नहीं, आप प्लेसमेंट में भी मेरे को बैठना नहीं था। तो अगर आपके पास कुछ मतलब बैकअप नहीं हो तो आपके फैन ऑटोमेटिकली उठ के आप पढ़ने लग जाओगे। तो वही है कि आप अपने लिए थोड़ा सेट करो कि आपका गोल क्या है।
मेरे लिए गोल था शुरू से ही। तो मैं ऑटोमेटिकली उठ के पढ़ने लगता था, तो उसी से ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाती थी। एंड ऐसा होता था कि यार मतलब 15-20 दिन मतलब गोल्स कंप्लीट होने लग जाए ना हर दिन। जैसे सोने से पहले आपको पता चल जाए कि हाँ, इस दिन का गोल मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो जो फीलिंग होती है ना वो बेस्ट होती है। और 15-20 दिन बाद ना आपको पता चल जाएगा कि आप कंसिस्टेंट हो चुके हो। तो इट्स ऑल कि यार ट्राई करते हैं, खत्म करते हैं आज का गोल्स। शॉर्ट गोल सेट करो, उसको कंप्लीट करो, आपको मजा आने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। इंग्लिश में आंसर कर देते, व्हाई चूज IIT मद्रास? वेल, I joined IIT Bombay previous year, and I was hoping to switch from there. So I chose IIT Madras because I didn't want to join ISC Bangalore. So the only other option was IIT Madras, and I knew that I would get internship after 1 year. So that's the big point. So I think that's the primary reason, and there were other reasons too. But what would be your tips for people who go to college and have just started their preparation for GATE? फिर से यार ईयर मेंशन करना। हर्ष, हर्षा, what is the right time to give test series? जैसे कोर्स खत्म हो वैसे ही। Congratulations first of all. How did you manage your stress कि your course wouldn't be completed on time? Approx how many times how did you take to complete one subject? मेरा ऐसा था कि हाउ डिड यू मैनेज टू, हाउ डू यू स्ट्रेस कि योर कोर्स वुडंट बी कंप्लीटेड? मैंने कंप्लीट करने पे इतना स्ट्रेस दिया ही नहीं, क्योंकि जब मैं कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही एम था कि जितने अच्छे से मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकूं उतने अच्छे से करूंगा। मेरे को वापस उस सब्जेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कभी नहीं पड़नी चाहिए। एंड आप ये बात इसके बारे में कभी मत सोचो कि मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं। अभी से बहुत जल्दी है, ये लिटरली बहुत जल्दी है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। अपना पहले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना, फिर ये क्वेश्चन पूछने की कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। सबसे पहला एम ही आपका ये होना चाहिए, कंप्लीट करो कोर्स को, इस सब्जेक्ट को, सॉरी, अच्छे से, ताकि वापस आप उस सब्जेक्ट में वापस आने की आपकी वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट को शायद मैंने 1 महीना दिया है, मिनिमम 1 महीना दिया है, और वो भी आई थिंक इट्स सफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन अभी मत पूछो, कोई मत पूछना कि कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। सिली क्वेश्चन है यार। और मतलब बहुत लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन अ डे। मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव, सबका अलग अलग होता है। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए खुद के लिए कि आपको कितना आवर्स देना है। वो ये कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, तब भी आपको, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। आप उसके बारे में रो तो सकते नहीं हो किसी से, तो करना तो पड़ेगा ही आपको। तो आप मेरे स्केड्यूल सेट करो कि यार, स्केड्यूल मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के 5 बजे से उठ के पढ़ना है 7 बजे तक, 7 से 9 ये करना है, 10 से 12 ये करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम आपने सेट किया कि 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना ही है, वो कभी भी पढ़ो मेरे हिसाब से। मैं उठता था 9 बजे, सोता था 2-3 बजे। तो ये भी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप अपने हिसाब से सेट करो। मैं कभी सुबह उठने में विश्वास करता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था मेरी रात रात में अच्छी इफेक्टिव स्टडी होती है। तो यार इंग्लिश में इतना अच्छे से आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। How many hours a day should you give to get a rank below 100 if one is starting just now? And what all can be done till Fab? How difficult or is it? So if you are starting today, आपका एम होना चाहिए, योर ओनली एम शुड बी टू
give as much time on a subject as you can. मतलब आप अपने कंसेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में एकदम स्ट्रॉन्ग करो. आपका फर्स्ट एम आपका ये होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है. एंड अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर इजिली एबल टू सॉल्व एनी क्यूज एनी क्वेश्चंस दैट आर थ्रोन एट यू. सो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना कि कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको सिंसियरली खत्म करना, अच्छे से खत्म करना. एक मिनट. तो हाँ, वो ये कि कोई सा सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सिंसियरली उसको अच्छे से पढ़ना. और हाउ डिफिकल्ट और इजी इज इट, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ. मैंने भी फैब में ही चालू करा था. अच्छे से प्रिपेयर करना मैंने फैब से ही चालू करा था. एंड इसी एंड 12 मंथ्स में 10 मंथ्स में मेरा हो गया था. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स रियली नॉट डिफिकल्ट. बस आपको सिंसियरिटी दिखानी है. सो did you solve PYQ after completion of every topic or after completing one subject, or how collectively for 60 subjects? So after every topic that I completed, I immediately went to solving the questions related to that topic. I actually made the reel about this question. I would solve 20 to 30 questions on that topic, and then I would jump to the PYQs to test my preparation, to test out my concepts. And तो ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट करने के बाद ही मैं टॉपिक वाइज करता था, ताकि मैं अपने सिलेबस से बाहर नहीं चले जाऊँ. मेरा मेन यही था कि मैं सिलेबस से बाहर नहीं चले जाऊँ पढ़ते पढ़ते. व्हाट डिड यू डू टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स लाइक कैलकुलेशन एरर, रीडिंग रॉन्ग फिगर्स? सिली मिस्टेक्स देखो सबसे होती है. लास्ट ईयर मेरी 139 रैंक इसलिए आई थी कि मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत करी थी, बहुत ज्यादा. तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का एक ही वे है, टेस्ट बहुत ज्यादा से ज्यादा देना. सिली मिस्टेक्स होती इसलिए क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. एंड उसका एक ही सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करना. एंड टेस्ट वही जो शायद गेट लेवल पे थोड़ा सा अबव हो. मैंने लास्ट ईयर एक टेस्ट सीरीज ली थी जो सिर्फ हार्ड टेस्ट प्रोवाइड करती थी. सिर्फ वही टेस्ट सीरीज ली थी. शायद वो मेरी थोड़ी गलती हो गई थी. और इसलिए मेरे 2023 में इजी क्वेश्चंस आ गए थे बहुत सारे, तो उसमें सिली मिस्टेक्स काफी हो गई थी. तो ये एक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना, इसका शायद ये एक सॉल्यूशन है. कैन यू गिव एनी टिप्स रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी? आंसर कर दिया है. हेलो फ्रेंडशी सर, आई हैव डाउट्स विद दिस कोर्स. हाउ मेनी आवर्स स्टडी इन अ डे? हाउ वुड यू अप्रोच गेट एग्जाम इफ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर 2025? Uh, how would you approach GATE exam if you were preparing for 2025? क्या आंसर दे उसका? मतलब अगर गेट 2025 मेरे अकॉर्डिंग अगर परसों ही हो जाए तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी फिर से AR2 आ जाएगी. मतलब तो 2025 के लिए अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले कोचिंग ढूंढूंगा जो जिसने मतलब अच्छे से कवर किया पूरा टॉपिक्स. एंड हाँ, तो उसके बाद फिर मेरा मेन एम यही रहेगा कि अ, जो भी सब्जेक्ट अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको डीपली पढूं. सारे प्रूफ्स वगैरह एकदम अच्छे से. मेरे को प्रूफ्स में काफी मजा आता था एक्चुअली. तो बस ये एम करता है कि एक एक चीज, एक एक टॉपिक में डीपली पढूं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, मतलब कितना भी लंबा ड्यूरेशन हो. और उसके बाद वही क्वेश्चंस वगैरह, PYQs वगैरह, मतलब सबकी प्रिपरेशन शायद एक जैसी है. टॉपिक खत्म करना फिर PYQs वगैरह यही. पर मेरा ये होता है कि मेरे को डीप में पढ़ने की बहुत इच्छा होती है. मतलब मैं किसी भी चीज़ पर डीप तक ले जाता हूँ, MS धोनी जैसे. तो मेरा यही एम रहता है. तो मैं भी बोलूँगा कि कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको आप डीप में पढ़ो, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है आपको मतलब वीडियो देखने में, कोर्स देखने में.
Hi, Francis. First name. How do you solve PYQs? Like, do you solve used to solve them in a time set like 20 to 23 hour questions in an hour on average? Uh, Actually, when I when I was solving PYQ, I didn't used to set any time limit. Um, but I think क्योंकि टाइम लिमिट तभी होता है ना, मतलब जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर एक सब्जेक्ट के, तब ज्यादा सेंस बनता है। तो मैं टाइम लिमिट तो नहीं सॉल्व करता था, एक आवर में इतने करने, पीवाई की बात कर रहा हूँ। पर हाँ, उसको उसी वे में देता था मैं जैसे ओरिजिनल एग्जाम होती गेट की, मतलब उसी सिंसियरिटी से देता था। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन आईआईटी बॉम्बे एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ इट? सो आईआईटी बॉम्बे वाज really very good. I had a great experience, but I joined as a research assistant and I was not getting interest in the research that I was allotted to. So I took a hard decision to drop out of IIT Bombay. I dropped out at November in November, and I restarted my preparation on at October 20, sorry, December 20th. So I had 40 days to prepare for GATE 2024. And IIT Bombay was really good. As a teaching assistant, you would really enjoy. But I was not getting enough interest in research, and research is something like you should get interest. So I decided to drop out from IIT Bombay and prepare for 2024. Can you tell some of the tricky topics or subject you faced while preparation first time giving it and recent gate? Tricky topics or subject? या टॉपिक्स तो मेरे को ट्रिकी इतने लगे नहीं। लाइक मेरा हार्ड सब्जेक्ट बता देता हूँ, मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा हार्ड लगता था, क्योंकि मैं उसमें लर्न करने वाली चीजें भी रहती थी थोड़ी थोड़ी, और न्यूमेरिकल्स भी रहते थे जो मेरे को थोड़े से मुश्किल लगते थे। बट वही मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी, उसको भी ओवरकम करा उस ईयर को। मेरे को लर्न करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे को लर्न करवाया गया था। मेरे को ऐसा बताया गया था कि इस टॉपिक को आप लर्न करना ही पड़ेगा, और कोई वे नहीं है। पर अब पता चला कि उसका वे है, मतलब दूसरी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा वीक था, क्योंकि मेरे को लर्न करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक ही वे था मेरे लिए, मेरे को बताया गया था कि लर्न करना पड़ेगा आपको, और कुछ वे नहीं है। एंड someone mentioned in Google Classroom some topics of CO and other subjects are not covered. Okay, सर ने आंसर कर दिया। Reading practice like every day for 3 hours of current topic you complete your subject only. Can someone who has not even qualified for GATE 2024 can get a rank under 100 for the next year if they are starting the entire preparation in the month of May? देखा आपका, इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर गेट 2024, तो आपको रीजन पता होगा। आपने मतलब व्हाट वर द प्राइमरी रीजंस यू फील कि इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगर आपको लग रहा है कि वो रीजन बहुत स्ट्रांग है, लाइक कि आपने पढ़ा ही नहीं, आपने ऐसे ही दे दिया, तो उसका इस गेट से कोई रिलेशन नहीं है। और आपने अच्छे से पढ़ा है, से भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मे बी लाइक इट्स योर बैड लक और समथिंग। तो उस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई रिलेशन नहीं है गेट 2024 का और गेट 2025 का। कोई मतलब अब मेरा आईटी बॉम्बे में आई हैड अ फ्रेंड सत्यम शुक्ला, उसकी भी शायद यही स्टोरी थी थोड़ी, और उसने भी काफी जंप करा था अपनी रैंक को। एंड उनके वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, गो क्लासेस पे, अगर आप देख सकते हो जाके। तो कोई रिलेशन नहीं है। तो कब मतलब इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो मई में स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी स्टार्ट कर दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी समराइज कराना पड़ेगा, सिद्धार्थ।
Next. Sir, first was initial. What mistakes did you identify in your first attempt that you rectified in second attempt? हाँ, so one of the biggest mistake है कि last year I hadn't solved enough of the uh, mock test, and as I said, I only attempted hard mock test दूसरे कोचिंग के. So that was the, I think, biggest mistake I did. उससे क्या हुआ कि गेट 2023 बहुत बहुत उसका पेपर लेवल बहुत इजी था. तो मैं पेपर देखने के बाद ही मैं मतलब इतना परेशान हो गया था कि क्यों आया इतना इजी. मैं मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स हुई थी. तो इस साल मैंने मतलब 20+ मॉक टेस्ट दिया. तो मेरे को पता चल गया था कि इजी पेपर भी है, मीडियम पेपर भी है, हार्ड पेपर भी है. तो मैं अच्छे से कर लूंगा. तो हाँ, ये रेक्टिफाई करा था मैंने इस साल. एंड थोड़े से मतलब इस बार मैंने ब्रेथ भी कवर करी है. जैसे मैंने गो क्लासेस की यूट्यूब पे मतलब शायद मोस्ट ऑफ द वीडियोस देख ली होगी जो मैंने पिछले साल नहीं देख पाया था. तो मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी है. I started gate preparation from November but not able to clear. हाँ मतलब शुभ, I started gate preparation from November but not able to clear gate 2024 and I am planning to take full drop graduation year 2023. ओके. यार ड्रॉप लेने का मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर शायद मैंने अलग रीजन से ड्रॉप किया था. पर अगर आप सीरियस हो गेट के लिए तो मतलब कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो, उसके लिए आप करियर में ड्रॉप ले रहे हो, तो बढ़िया चीज़ है यार. मतलब बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर रहे लिटरली. तो अच्छा है अगर आप सीरियस हो तो. हाँ, जरूर. गुड डिसीजन. एंड आज के मार्केट में 2 साल एमटेक में पढ़ के जॉब लेना इट्स बेटर आई थिंक. अभी तो शायद जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है ऑफ कैंपस. एंड इवन टीयर 3 कॉलेजेस में जैसे मैं बिलोंग करता था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हालत बहुत खराब थी. तो अगर आईआईटीज में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो, तो उससे बेटर अभी इस मार्केट में शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ज़्यादा कुछ अच्छा. 2 साल बाद तो सिचुएशन शायद और अच्छी हो जाएगी. What should be my strategy if I start just today? Should I go in sync or start from beginning? ये डिपेंड करता है. मानिक शो. डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपको पता होगा कि कितने अच्छे से पढ़े हैं. और मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना. जो पहले पढ़े हैं उससे मत करना. देखना कि आपको अच्छा पसंद आ रहा है कि नहीं, मतलब एंजॉय कर रहे हो कि नहीं. और आपको लग रहा है कि हाँ, याली स्टार्ट मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो तब जाके आप पुराने सब्जेक्ट्स को वापस उठा सकते हो. What do you mean by internships where favorite internship not offered? IIT Bombay, in IIT Bombay, internships were not allowed for MTech students. In IIT Madras, uh, actually, in August only, companies visit IIT Madras to offer internship roles to students. But in IIT Bombay, it's not the same. So I think that's it's also in IIC Bangalore. You can do internship after 1 year. Similarly in IIT Madras, but not in IIT Bombay. And IIT Bombay and IIT Madras are, I think, comparable. The only difference is IIT Bombay has the best location. So that's the only thing I think about IIT Bombay why people choose that. And also herd mentality, I think. But both are comparable, I think. Hello friends, Udit Tiwari, did you had placements as a backup when you were preparing for GATE? हाँ. सो एक्चुअली मई में हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट का फॉर्म आया था. और जिस जिसको इंटरेस्टेड हो प्लेसमेंट वो कर सकते. मैंने वो प्लेसमेंट का फॉर्म ही नहीं भरा था क्योंकि मेरे को बैकअप रखना ही नहीं था. मतलब मेरा ये सीन था क्योंकि मेरे को अपने लिए सबसे
वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट करनी थी, ताकि मतलब मैं कोई मैं ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाऊं, कोई बहाना नहीं मिले मेरे को कि गेट नहीं हुआ तो जॉब ले लेंगे ऐसा वैसा। तो मैंने अपने अपने लिए बैकअप को भी रखा ही नहीं था, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार गेट सीरियसली दे रहे हो तो प्लेसमेंट में मत बैठना। मतलब सीरियस मत होना, बैठ सकते हो ऐसे ही टेस्ट के लिए, सीरियस मत होना। अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो प्लेसमेंट्स पे ध्यान देना। दो चीज पे एक साथ शायद सजेस्टेबल नहीं है। What was your favorite subject in GATE, and which field you will pursue masters like AI systems, etc.? Favorite subject, यार फेवरेट तो नहीं, सभी फेवरेट नहीं थे यार। और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए सब पढ़ रहा था मैं। तो फेवरेट नहीं है शायद, मैंने किसी को बनाया नहीं। हाँ एल्गोरिदम, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, हाँ वो फेवरेट है। मतलब उसको मैंने शायद सिर्फ 10 to 15 डेज दिए हैं ओवरऑल प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते करते थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो गेट का मेरे को काफी सिंपल लगता था, और इसलिए शायद हाँ बेस्ट सब्जेक्ट मिली वही है। एंड in which field you will pursue masters? I have uh, I have more inclination towards AI, but yeah, I will try all the subjects in my first semester, and interest के हिसाब से मैं choose करूंगा. Like in third semester, you have the option to select the guides under which you will do your MTP. And in first and second semesters, you can try different subjects. So मैं वही करूंगा, subjects में try करूंगा different, and फिर मैं decide करूंगा. How many time do you complete GATE CS course? एक बार ही करा था, वो एक बार sufficient रहता है, दूसरी बार मत करने बैठना. Can someone who has not even qualified for GATE 2024 can get I'm currently in end of my second year. I'm going to start my GATE preparation in this semester. Where should I focus on GATE CSE now, or should I focus on GATE DA in parallel? Actually, what's the benefit of focusing on both? So if you're in second year, you have enough time. You can literally do everything. Everything मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ करना, शायद मेरे हिसाब से सीएसई की भी तैयारी करो, डीए की भी तैयारी करो, एंड इवन एक्स्ट्रा स्किल्स जनरेट करो, वेब डेवलपमेंट स्लैश एमएल स्लैश डीप लर्निंग स्लैश कॉम्पिटिटिव। तो सेकेंड ईयर में तो लिटरली आपके पास बहुत टाइम है। थर्ड ईयर में हो तो आपको शायद स्पेसिफिक हो जाना चाहिए कि आप करना क्या है। बट इन इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, देन आई थिंक यू शुड get your hands dirty in all the skills that you think interests you. मतलब लिटरली बहुत टाइम है सेकेंड ईयर में हो तो। अच्छा एंड ऑफ सेकेंड ईयर में हो, हाँ अगर आप एंड ऑफ सेकेंड ईयर में हो और आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो, एक्चुअली गेट टीए में अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स गेट सीएसई में भी है। तो गेट सीएसई के लिए ज़्यादा फोकस करना। और गेट डीए मतलब टाइम मिल जाए तो दो सब्जेक्ट शायद एक्स्ट्रा, एमएल एंड एआई, तो टाइम मिले तो उन पे भी ध्यान देना थोड़ा। एंड गेट ए इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट गेट हैज टू ऑफर। हाँ तो दोनों पे फोकस करना, हाँ कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल कर सकते हो आप। So should we focus on solving questions more on theory, and can we study 2 or 3 subjects simultaneously? मैं जो करता था कि मैं दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली करता था। जब एक्चुअली जब ब्रेक चल रहा था, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था, तो मैं दो सब्जेक्ट्स पैरेलल करता था। क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो रहा था पढ़ते पढ़ते सुबह शाम। हाँ तो इट्स गुड इफ यू कैन मैनेज दोस 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली, बट 3 सब्जेक्ट्स आई डोंट थिंक इट्स गुड। 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ोगे तो you will devote less time in one of the 3 subjects, so that's not a good thing.
सो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। मेरे लिए तो शायद, अगर मैं कॉलेज नहीं जाता तो मैं दो सब्जेक्ट्स पैरेलली करता, बिकॉज इट वॉज बेस्ट फॉर मी। एंड बट आई वोंट रिकमेंड ओनली दिस स्ट्रेटेजी टू एवरीवन। आप डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट है, और आप एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो उसी टाइम छोड़ देना ये पैरेलल करने वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो सर, वेयर यू राइटिंग नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट विल बी। हाँ यार, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट थे, बट ट्राई टू मेक नोट्स स्मार्टली। अगर क्वेश्चंस सर करा रहे हैं तो सॉल्यूशंस भी पीपीटी में अवेलेबल हैं, तो उसको नोट डाउन मत करना। हाँ, अगर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कुछ टिप्स मिल रही है तो आप वो लिख सकते हो। थ्योरी 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 ट्राई करना लिखने का, कि आप लिखोगे तो नोट्स में अच्छा लगता है वापस पढ़ोगे तो। और क्वेश्चंस शायद मत लिखना, टिप्स लिखना, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर नोट्स। So try to make notes smartly. Sir, if possible, can you share why did you not why did not choose ISC? ठीक है। I think for me, only for me, and बिल्कुल जरूरी नहीं है, लिटरली, नहीं तो आईएससी वाले मारेंगे मेरे को। मतलब मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था आईआईटी का टैग। आईएससी का मैं किसी को बोलूंगा अपने जान पहचान वालों को, तो उनको पता नहीं होगा आईएससी का, और मेरे लिए थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मेरे को आईआईटी लेना था लिटरली। पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो नाम का ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आईआईटी ज्यादा प्रेफर करा। पर आईएससी, अगर आईआईटी बैंगलोर होता तो मैं आईएससी प्रेफर करता, और कुछ नहीं। Can you suggest some resource for practice problems? What is the resources of practice problems? um, can you suggest some resource practice problems? What is the one thing I can ask? Can someone who has not even qualified for GATE 2024? अच्छा, क्या पूछेगा भाई? Is there no options to change your research as RA and IDO, like you can change course in BTech? Actually, in RA, their professors offer various roles. You have to choose that role before coming in IIT Bombay. So I chose a role and I was not getting interest, and you cannot change that role. I think you cannot change role or professor once you come into IIT Bombay. And it's not about the course. I really enjoyed all the courses that were in IIT Bombay. It was specifically the research part that didn't interest me. And you can't actually change that research topic. I also tried changing, but because of news. So yeah, and it's not about changing the course; it was about changing the research area, which I was not allowed to. How do you know all this information regarding internship criteria in different institutes? तो यार, गेट क्लियर करने के बाद सब आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं इंटर्नशिप्स की नहीं। तो अभी मत डिसाइड करो ये कि कौन सा कॉलेज चूज करना है गेट दिए पहले, गेट देने से पहले ही। इतने सपने मत देखो यार। So for completing working, so for working people, so for working people, completing two subjects in parallel is quite tough. I'm aiming to complete 12 plus 2 already by my end. Should I also go for? Hi, Priyanshu. Yes, sir. Hmm. So let me cover one doubt which Okay. many students are basically asking. So this doubt many students are asking, can I do it? Can I do it in 6 months? Can I do it in 9 months? Can I do it in 1 year? Can I do it? Basically, this type of doubt students are asking. I did not qualify last year. Can I get a top 100 rank this year? So these type of doubts, basically anything related to can I do it? Okay, whether it is in 5 months, in 6 months, in 1 year, or okay, so anything. Okay, anything related to can I do it? Do it. I want to address. See, only
only you know whether you can do it or not. Okay, so first of all don't compare yourself with others. That some student is saying that, sir, I don't know anyone who cracked, in just 4 months, who got first rank, something like that. Okay, so if you don't know, then it is not necessary that you also cannot get it. Maybe you can get it. Okay, like let me give you one example. For example, let me tell you about myself. Okay, I got 14 backlogs in the BTech. When I was doing my BTech, I got 14 backlogs. And after that, many people, actually everyone, when I started my GATE preparation, everyone told me that uh, GATE is not for me. Basically, just somehow get some job, maybe okay, anywhere, somehow get a non-technical, technical, whatever job I can get, just get it. Okay, so I cannot crack GATE because people were thinking that okay, I have 14 backlogs in my BTech, and my BTech is 5 years. I cleared my BTech in 5 years. Okay, so people just told me that I cannot do it. And literally there were people, okay, literally there were relatives, there were people, there were friends also, okay, who told me not to go for GATE exam. But in just 6 or 7 months, I started my preparation from June. Okay, so in just 6 or 7 months from June, okay, I started, and I got all India rank 1276. Okay, so 1276 rank I got in just 6 or 7 months of preparation. And during these 6 or 7 months of preparation, I was also going back and forth to my college just to clear my backlogs. Okay, so uh, a lot of time I spent actually to clear my backlogs. Okay, and you can see whichever time I got. Let me tell you that it was happening like this. I'm preparing for my GATE exam, and I'm going by train to my BTech college. Okay, and then after giving one test, backlog paper, and then I am again coming back, and after 2 days I have another backlog paper. I am again going by the train. I am again coming, or something like that I was doing. Basically, and in the train also I was studying. And uh, in my BTech college, if I'm staying, let's assume I'm staying for 1 or 2 days, there also I was studying for the GATE exam. Okay, so I did not make literally I did not make any excuses, because no one was expecting that I am going to get a good rank. Okay, so there was basically, I was just like, okay, I need to do it. Okay, I was not making any excuses. I was not going to toppers. Can I do it? Can I do it? Can I do it? Okay, so I was not asking. Literally, there is not a single person whom I went and I asked, sir, can I do it? Okay, I got, and just in 6 or 7 months of preparation, I got 1276 rank. And then after that, I took 1 year of drop, and then I got all India rank 67. So this is what I'm telling you, that students who are asking doubts related to can I do it, okay, and followed by anything, okay, can I do it if I start now, if I start in August month, if I start anything, like if I do it with job, if I do it with third year, fourth year, okay, anything. So all these things do not matter. You will find every kind of topper. Every kind of topper you are going to find in the top rankers. Okay, you can find someone who completed Go classes course in 4 months. One example is Ansika. You should watch her interview. Okay, just see the dedication in her eyes. Okay, she is speaking. She is speaking about her preparation, and just just see that interview. I'm telling you. Okay, just take half an hour, 1 hour, and see that interview. Yes, Priyansu, have you seen like the look? Just look into her eyes and see the dedication. There is no excuses that I cannot do it. Can I do it? There is no excuse. She is just she started. She started Go classes course. Let me tell you, she has completed every single video of Go classes course. Okay, so she started in August month, and in 4 months she completed the entire syllabus. Okay, and she watched entire syllabus, every lecture she watched, and she was there. There is no excuse. She was preparing dedicatedly, and you can just watch the interview and you can see. Okay, Yes, so sir, this I'm is what also in I'm. touch with her. Yes, I Priyansu. know. I'm also in touch with her, and I know about her dedication. Yeah, Yes, she so was really that kind of dedication people should have if you want to top a GATE exam. Okay, this GATE exam, UPS exam, IIT JEE exam, whatever exam you have, all these are beautiful exams. And if you want to if you want to become a topper, if you want to become like a like Priyansu, then you should behave like Priyansu. Okay, you should not make excuses. That is the one thing. So many students, before they start preparation or during the preparation also, they will just keep making excuses. Okay, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तो इतना ही टाइम है, मैंने लेट स्टार्ट किया,
ठीक है, मैं तो बीटेक के साथ कर रहा हूँ, मैं तो जॉब के साथ कर रहा हूँ. People are just, you know, a lot of people, they just keep making excuses, one after one, they just keep making excuses, and that is the reason you, in any exam, not only about gate exam, in any exam, toppers, the successful people are very less, and the, I can say, the people who do not get successful, they are very they will be, of course, there will be much more than the successful people. Okay, so if you want to become a topper in any exam, then at least have the mindset, at least have the approach like a topper. Okay, this is really my suggestion to you. When I was preparing for the gate exam, I never asked this question, can I do it? Okay, let me tell you one more incident. So I will speak in Hindi for this incident. बिल्कुल क्या है कि मतलब ये तब हुआ जब मैं गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची थी मैंने. उस टाइम तक मैंने गेट की कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था. बीटेक के अंदर जब मेरे 14 बैकलॉग हैं, जब मैंने 5 साल में बीटेक करी है, तो आप समझ सकते हो कि बीटेक के अंदर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी. आई वॉज एट द जीरो लेवल. ओके, आप आपका आप जो आपको लगता है ना कि मैं जीरो लेवल पे हूँ, आपके जीरो से भी मेरा जीरो नीचे ही होगा. ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही जीरो लेवल के ऊपर था मैं. और उस टाइम मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा दोस्त वो इलेक्ट्रॉनिक्स से था और मैं कंप्यूटर साइंस से. तो हम दोनों, एक गेट गेट की प्रिपरेशन करता था हमारा सीनियर, उसके पास हम गए थे. हम दोनों उसके रूम पे गए थे. और वो जो सीनियर था वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से था, और मेरा जो दोस्त था वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से था, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस से था. लेकिन उस सीनियर ने बेसिकली हमें एक ही चीज बोली. जब हम उसके पास गए, हम उससे पूछना चाहते थे कि गेट एग्जाम क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है, ठीक है, क्या क्या मतलब चीजें करनी होती हैं, कितना सिलेबस है, ये बेसिकली ओवरऑल हम गेट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए थे. और उस सीनियर ने उस सीनियर ने हमें सिर्फ एक ही, बेसिकली एक लाइन बोली कि मत करो, गेट की प्रिपरेशन नहीं होगी. उसने पता है ऐसा क्यों बोला? उसने आगे ये भी बोला कि मैं 2 साल से कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो रही. वो उस सीनियर का मतलब, उस पास आउट था, वो ड्रॉप ले रखा था उसने. 2 साल तक उसने ड्रॉप लिया. बीटेक के बाद में उसने 2 साल ड्रॉप लिया. अब वो दूसरे 2 साल बाद में वो बोल रहा है कि मैं 2 साल से गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ, 2 साल लग गए मेरे को, मेरे से 2 साल से नहीं हुआ, तुम लोग मत करो, तुम लोग नहीं होगा गेट. समझ रहे हो? मतलब वो बंदा अपने सजेशन सिर्फ अपने हिसाब से दे रहा है, क्योंकि उससे नहीं हुआ, 2 साल तक तैयारी कर रहा है. ठीक है, 2 साल से ड्रॉप ले रखा है, उससे नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा लग रहा है कि सामने जो भी आ रहा है उससे भी तो नहीं होगा. ठीक है, समझ रहे हो? तो ऊपर से मेरे बैकलॉग की चीजें सुन के तो उसने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि तुझसे तो पक्का नहीं होगा. ठीक है. तो तो मैं बस ये चीज बोल रहा हूँ कि उस टाइम मेरा जो दोस्त था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से था, मेरा जो दोस्त जिसके साथ मैं गया था, हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद में वो काफी डिमोटिवेटेड था. मुझे सच में फर्क नहीं पड़ रहा था वो सीनियर जो है वो क्या बोल रहा है, मुझे कितना डिमोटिवेट कर रहा है, या क्या बोल रहा है कि क्लियर नहीं होगा, मुझसे 2 साल से नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं होगा, छोड़ दो गेट की प्रिपरेशन मत करो, इस तरह की फालतू की चीजें जितनी भी उसने बोली, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. सच बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन मेरा जो फ्रेंड था वो डिमोटिवेट हो गया. ठीक है, उसे अपने फैमिली को सपोर्ट भी करना था, और मतलब अल्टीमेटली मतलब वो काफी डिमोटिवेट हो चुका था. उसने ये सोचा था कि मैं 1 साल यार तैयारी करूंगा, और उसके बाद में मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूंगा. उसने ये सोच के गया था वो उस सीनियर के पास. लेकिन उस सीनियर ने उसको कर दिया डिमोटिवेट कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे हो जाएगा, और इस तरह से फालतू की चीजें. तो वो जब डिमोटिवेट हुआ तो मुझे समझाना पड़ा कि भाई हो जाएगा, तू और मैं चालू करते हैं, तू इलेक्ट्रॉनिक्स की करेगा, मैं कंप्यूटर साइंस की करूंगा, लेकिन अभी से शुरू करेंगे हम, और उसके बाद में जम के तैयारी करेंगे. जम के, कुछ कोई बहाना नहीं, कोई इस तरह के इस फालतू सीनियर से दोबारा मिलना ही नहीं है. उसके इसके इसको तो मतलब इसका कांटेक्ट डिलीट मार दे, इससे तो दोबारा मिलना ही नहीं है, इसको तो शक्ल ही नहीं, इसकी शक्ल नहीं देखनी. और उसके बाद में 1 साल बाद में मेरी रैंक आ गई थी कंप्यूटर साइंस के अंदर 1276, 1276 ये मेरी रैंक थी. और मेरे जो फ्रेंड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रैंक थी 1700 के आसपास रैंक थी उसकी. और उसको एनआईटी वारंगल मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1750, 1756, ऐसी सी कुछ रैंक थी, मतलब 1700 की रेंज में रैंक थी. और उसको एनआईटी वारंगल मिला था. ठीक है, तो मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि वो जो सीनियर जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था ना, उसका मतलब उसका क्लियर, उसकी टॉप 5,000 6,000 में भी रैंक नहीं आ रही. ठीक है, 2 साल उसने तैयारी में लगा दिए, और उसने डिमोटिवेट जिसको किया, मुझे और मेरे दोस्त को डिमोटिवेट किया. और हम दोनों ने, मेरी 1276 रैंक आई, और उसकी मेरे दोस्त की 1700, जितनी भी 1756 के आसपास रैंक आई. तो आप देख सकते हो कि दुनिया जो है वो बोलने वाले बोलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लोग अपने हिसाब से बोलते हैं. देखो, जिसकी फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी ने 1 साल तक मशीन लर्निंग पढ़ी और उससे मशीन लर्निंग सीखी नहीं गई,
ठीक है, मान लो कि उसको समझ में नहीं आई, तो वो पता सबको क्या बोलेगा, वो सबको एक लाइन बोलने वाला है, नहीं नहीं गेट डीए मत कर, गेट डीए मत कर, मशीन लर्निंग बहुत हार्ड है, मशीन लर्निंग बहुत हार्ड है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि जब मेरे से 1 साल में नहीं हुई तो इससे कैसे हो जाएगी। समझ रहे हो, तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि लोग, आपको जितने भी आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, बात यह है कि उनकी मेंटेलिटी यही हो चुकी है, क्योंकि मतलब वो उनके, वो क्या कहते हैं, उनके प्रियांशु की प्री मतलब दिमाग में, मतलब वो है उनके, वो जेन्युइन, मतलब वो सजेशन दे रहे हैं अपनी उनकी उनकी नजर में हाँ उनका हाँ। सजेशन जेन्युइन है। ठीक है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बन चुका है कि यार मेरे से 1 साल में एमएल मेरे से समझ में नहीं आई तो ये इससे कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो वो दिमाग में बन चुका है, लोगों के दिमाग में बन चुका है, मेरे से 6 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो इससे कैसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आपको फोकस करना है कि आपको किसकी सुननी है। ठीक है, लोग बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं जो आपको बोलेंगे, मेरे से 1 साल से गेट क्लियर नहीं हुआ तो तू 4 महीने में कैसे कर लेगा। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आया तो तेरे को कैसे समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो वो ये कि लोगों ने अपनी जो भी बना रखी है अपने दिमाग के अंदर, जो भी एक तरीके से उनकी छोटी सी दुनिया बना रखी है उन्होंने अपनी, उससे वो आपको सजेशन दे देते हैं। ठीक है, छोटा सा दुनिया उनकी, और उससे आपको फेंक फेंक के सजेशन दे देते हैं, आपको, आप हो जाते हो डीमोटिवेट। ठीक है, इससे अच्छा है ये सारे फालतू की चीजें छोड़ो, एक्सक्यूजेस बना बंद करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और एक एग्जाम्पल सेट करो। एक एक कम से कम एक ऐसा होना चाहिए ना, आज प्रियांशु है, लास्ट ईयर 139 रैंक, इस बार ऑल इंडिया रैंक 2, अभी थोड़ी देर पहले बोला प्रियांशु ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कल गेट का एग्जाम करवा लो तो मैं ऑल इंडिया रैंक 2 ले आऊंगा। ये प्रियांशु ने बोला, ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कम से कम, और ये चीज एक्चुअली प्रियांशु मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। गेट 2018 के अंदर मेरी आई थी 67 रैंक, उसके बाद मैं आईएससी गया, आईएससी के अंदर 2 साल तक, अब मैं आईएससी में, आप भी जानते हो आईआईटी बॉम्बे आईएससी, ये कितने हेक्टिक रहते हैं, वहां पे टाइम नहीं मिलता, असाइनमेंट प्रोजेक्ट। हम्म। ठीक है, 10 आईएससी के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, थीसिस होती है, सब होता है। लेकिन फिर भी मैं गेट का एग्जाम, मैंने 2020 के अंदर मैं गेट का एग्जाम सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए गया था, और मेरी 53 रैंक आ गई। मतलब कि जब मैंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन करी थी, मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरी 67 थी, और 2 साल बाद मैं ऐसे देने गया, तब मेरी 53 रैंक थी। तो मैं बस वो बोल रहा हूँ कि कम से कम कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर। आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की कर लो प्रिपरेशन, आपकी लाइफ है, तो कम से कम थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस तो रखो, कम से कम माइंडसेट तो कम से कम रखो कि यार टॉपर बनने का, सक्सेसफुल होने का माइंडसेट तो रखो। शुरू होने से पहले आपको मेरे से होगा कि नहीं होगा, आप लोगों से पूछ रहे हो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि मतलब टेलीग्राम के ऊपर लोग पूछ रहे हैं, मतलब मैं सोच के देखो कि मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। आज अगर मैं कैट एग्जाम की तैयारी करना चाहूँ तो मैं रैंडम अनोनिमस लोगों से पूछूंगा कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, मतलब कि वो मुझे बताने वाला है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ, मतलब पूरा जो करियर का जो डिसीजन है ना, वो उसके हाथ में छोड़ दिया कि भाई ले, मेरे से होगा कि नहीं होगा बता मुझे। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो कोई अनोनिमस टेलीग्राम का अकाउंट हो सकता है, या जरूरी नहीं है वो टॉपर भी हो सकता है, वो कोई फेलियर भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, वो आपका सेल्फ रिलेटिव भी मेड हो गॉड। सकता है, वो आपका पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं हाँ। आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, बहुत बार, कभी कभी ऐसा भी होता है, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है, पेरेंट्स भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी दुनिया ना, मतलब उन्होंने भी, जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने ऐसे, वो एकदम ही उनकी भी एक अपनी दुनिया है, उन्होंने भी जो आसपास वो देखते हैं उनसे आपको वो सजेशन दे देते हैं। ठीक है, उनको अगर मान लो किसी पेरेंट्स ने देख लिया कि उन्होंने 4-5 लोगों को देख लिया जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो उस पेरेंट को, बेचारे को क्या लगेगा, उसको लगेगा यार मेरे बेटा से भी नहीं होगा, क्योंकि यार गेट तो बहुत हार्ड है, मैं इन 4-5 लोगों को देख रहा हूँ, इनसे क्लियर नहीं हो रहा, 2 साल से लगे पड़े, इनसे क्लियर नहीं हो रहा, तो पता नहीं मेरे बेटे से होगा कि नहीं होगा। तो वो तो बेचारे डर के मारे आपको, फिर आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा गेट की तैयारी मत कर, एक काम कर, नौकरी ले ले, नौकरी ले ले। इस तरह के मैसेज बहुत बार आते हैं हमारे पास कि सर मैं गेट की तैयारी करना चाहता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूंगा, मतलब मैं टॉप रैंक लेके आऊंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है ना वो डरे हुए हैं, वो बोल रहे हैं नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, जॉब ले लो, जॉब ले लो। तो मैं अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कम से कम माइंड सेट तो वैसा रखो, कम से कम वो कॉन्फिडेंस तो रखो, ये इस तरह की, या तो दो चीजें आप कर सकते हो, या तो आप माइंड सेट अच्छा रखो, कॉन्फिडेंस रखो और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। ठीक है, बाकी सारी चीजें जाएं भाड़ में। ठीक है, कोई कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आपने आपने सोचा है कि मेरे को गेट के एग्जाम तक मेरे को तैयारी करनी है, तो अपना बेस्ट एफर्ट लगा दो, अपना बेस्ट एफर्ट लगा दो, बस प्रिपरेशन करते रहो, इधर उधर की फालतू बातों के अंदर मत मत घुसो।
कि 6 महीने में होगा कि नहीं होगा, लोगों से मत पूछो। ठीक है, होगा, ऑब्वियसली होगा, अगर आप करोगे तो होगा, अच्छे एफर्ट डालोगे तो होगा। और ये अगर ये बार बार पूछ पूछ के लोगों से या लोगों की बातों में आके अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो पक्का नहीं होगा। और उसके बाद में फिर अगले साल आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे जो दूसरों को बोलोगे मेरे से 1 साल की तैयारी में नहीं हुआ तो तेरे से 6 महीने में कैसे हो जाएगा। फिर आप भी उस लिस्ट के अंदर आ जाओगे जो लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से मतलब थोड़ा सा मतलब मैं एक होता ना कि बोलना चाह रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह के डाउट पूछते हैं। तो हाँ। ये फाइनली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माइंड सेट रखो, कॉन्फिडेंस रखो, बिलीफ रखो। ठीक है। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई नॉर्मली, ऐसा जैसे यूट्यूब के ऊपर मैंने आज तक कभी यूट्यूब के ऊपर कभी ये चीज बताई नहीं है। आज तक यूट्यूब पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा जिसके अंदर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे बीटेक में इतनी बैकलॉग थी, ये था, वो था। आज तक मैंने नहीं बनाया। ठीक है। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, गो क्लासेस के स्टूडेंट्स हो, और तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो, बीटेक के साथ कर रहे हो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो या आपने पहले शुरू कर दिया, इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर आपने क्वालिफाई किया या फिर आपकी टॉप रैंक थी या कौन सी रैंक थी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद से गेट की एग्जाम तक आप कैसा एफर्ट डाल रहे हो, सिर्फ उससे आपकी रैंक आने वाली है। बस ये आज का सेशन ये खत्म होने के बाद में बस ये चीज सोच लेना कि आपकी रैंक आने वाली है कि आप कैसा एफर्ट डालने वाले हो इस सेशन के बाद से गेट की एग्जाम तक। क्या आप बहाने बनाने वाले हो या फिर आप अपना माइंडसेट इस तरह का रखने वाले हो कि मुझे लानी है। ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल एक होता ना कि क्रिएट कर दो, एक स्टोरी क्रिएट कर दो। ठीक है, आपकी खुद की स्टोरी होगी। कम से कम कल को हम भी आपका इंटरव्यू लेंगे, हम भी बताएंगे कि देखो इसने 6 महीने में क्लियर कर दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल्फ डाउट आते रहते हैं। तो वो सब हटाओ और सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करो, डेडिकेटेड गेट के एग्जाम तक लगे रहो आप। ठीक है, आ जाएगी, अपने आप आएगी, झक मार के आएगी, मैं बता रहा हूँ। जो टॉपर्स है ना उनको पता नहीं होता है कि वो टॉपर्स होने वाले हैं। अब प्रियांशु का केस अलग है, ठीक है, लेकिन जो बेचारे, क्योंकि प्रियांशु की तो लास्ट ईयर ऑलरेडी मतलब वन थर्टी हाँ। नाइन रैंक थी, तो वो कॉन्फिडेंस था। एक होता है ना वो कॉन्फिडेंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी 67 रैंक आई थी उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी 67 या मेरी टॉप 100 में आने वाली है। लेकिन जब मेरी 53 रैंक आई थी ना 2 साल बाद, उस टाइम मैं सच बता रहा हूँ मैंने कोई गेट की प्रिपरेशन भी नहीं करी। मैं एग्जाम देने गया था और उस टाइम मेरे साथ स्टैनली था मेरा दोस्त। हम दोनों गए थे, मैं और स्टैनली दोनों बाइक पे गए थे, और मैं उसको बता रहा था कि टॉप 100 तो ले आएंगे यार। मतलब ऐसे बिल्कुल 2 साल से मैं आईआईएससी के अंदर हूँ, और फिर भी मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि टॉप 100 तो मैं ले आऊंगा यार। ठीक है, और इसका रीजन सिर्फ यही है, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, उस कॉन्फिडेंस के भी 10-12 नंबर हैं। मैं बता रहा हूँ, 10-12 तो छोड़ो, 15 नंबर हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के। अगर आप ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में घूमते रहोगे, लोगों से पूछते रहोगे सर क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट, तब नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा माइंडसेट को स्ट्रांग रखो। ठीक है, प्रिपरेशन करो, और आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के भी नंबर होते हैं। ओके। सर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब यस प्रियांशु। इन मतलब मेरी क्लास में बीटेक में 120 स्टूडेंट्स थे। उनमें मैं अकेला था जो गेट की तैयारी कर रहा था। सब प्लेसमेंट्स में थे एंड आई वाज द ओनली वन दैट डिडंट गेट प्लेस्ड और डिडंट रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट। तो अक्टूबर नवंबर में सब प्लेस हो रहे थे, सिर्फ मैं ही, मतलब कुछ कुछ भी नहीं था शो करने के लिए, ना घर वालों को ना किसी को कि प्लेसमेंट वगैरह है। तो मेरे लिए सबसे लोएस्ट टाइम था, फिर भी मतलब मैं कंसिस्टेंट था प्रिपरेशन में। तो वो भी मेरे लिए फेस था। एंड सर मतलब बैकलॉग्स मेरे भी थे मेरे 5 बैकलॉग्स थे सेवन्थ सच सेम में? में। सच में बीटेक में 5 बैकलॉग थे? सेवन्थ सेम में मैंने जनवरी में, जब गेट 2023 था, तो मैंने 7 पेपर्स दिए जनवरी में, और February 4 को गेट का पेपर दिया है। अच्छा, मतलब आप अपनी पहले की बैकलॉग क्लियर करने के लिए पेपर दे रहे थे, तो टोटल 7 आपने पेपर दिए? हाँ जनवरी में 7 दिए हैं, उसकी तैयारी अलग, पेपर हमारा बहुत मुश्किल आता था और बीटेक में, तो उसकी प्रिपरेशन अलग थी और गेट की अलग, फिर भी मतलब करना था ही। ना प्लेसमेंट था ना कुछ था। तो ये सबसे जो लोएस्ट लाइन है पॉइंट ना, था। ये लाइन भी लिख लो, मैं बता रहा हूँ। एक किसी वो होते हैं ना छोटे छोटे जो कागज चिपकाते हैं अपन दीवार के ऊपर चिपकाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टिकी नोट्स। उसके ऊपर लिख लो कि करना ही है। जैसे अभी प्रियांशु ने बोला करना ही था। मतलब हम्म। मैं बस वो बोल रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर सक्सेसफुल होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कम से कम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, कम कॉन्फिडेंस रखो, माइंडसेट वैसा रखो कि करना ही है। ठीक है, अगर मेरे पास 4 महीने हैं, करना ही है, 6 महीने हैं, करना ही है, आज से शुरू कर रहा हूं, करना ही है। फर्क नहीं पड़ता कैन आई डू इट, कैन आई डू इट, नो, करना ही है। ठीक है, ये एक जो लाइन है ये रट लो, मतलब कि
कभी भी कुछ भी आए ना दिमाग में, कभी भी कुछ भी आए कि किसी किसी क्विज के अंदर या किसी टेस्ट के अंदर कम मार्क्स आ जाएं, तब भी एक लाइन बोलो, थोड़ा डिमोटिवेशन होगा। ठीक है, एक दो घंटे के लिए, 2 3 घंटे के लिए डिमोटिवेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर से बोलो करना ही है, और आगे बढ़ते रहो। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि करना ही है, ये करना ही है। जैसे प्रियांशु ने बोला कि करना ही था, अब क्या करें, प्लेसमेंट था नहीं, बैकलॉग के पेपर निकाल रहे हैं, और उसके बाद में करना ही था, तो अल्टीमेटली कर दिया। हाँ, सर मतलब मेरे सीनियर्स भी बोल रहे थे कि क्यों प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे, गलत डिसीजन है। मतलब 2 3 साल से किसी ने गेट दी नहीं थी, मतलब मैं ही था जिसने ट्रेंड सेट करा था हमारे कॉलेज में गेट पेपर देने का और रैंक निकालने का। उसके बाद से 10 12 लोग आने लग गए थे मेरे ब्रांच से। तो वो फीलिंग अलग थी सर, मतलब ट्रेंड सेट करने की। तो वैसे ही होता है कि आप 4 महीने पढ़ के गेट निकाले ना, तो आप उसका अलग ट्रेंड सेट कर दोगे, क्या 4 महीने में हो सकता है, सब हो करो तो सकता है सही, मतलब। बिल्कुल यार, हाँ करो तो वही। सही। हैं, अभी आज आज कौन, अभी क्या है, आज क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना। हाँ, तो हाँ मई के भी अभी हाँ। 6 7 दिन बचे हैं। एक एक दिन, हम्म, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो मई के बाद में क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस अभी फिर भी बहुत 8 महीने टाइम। बचे हैं। 8 महीने के अंदर मैं 4 बार गेट की तैयारी कर दूं ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। चलो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, चलो ठीक है, मैं तो मैं अपनी और प्रियांशु दोनों की बात नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रियांशु ने भी भैया ऑलरेडी रैंक ला के बैठा है, तो ऑब्वियसली 8 महीने में 6 7 बार गेट की तैयारी कर देगा ये। ठीक है, लेकिन मैं बस ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि 8 महीने, 8 महीने छोड़ो, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कितना टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, 6 महीने जो है ना, 6 महीने इट इज अ गुड टाइम। कि हाँ, एफर्ट डालना पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका एफर्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास में 8 महीने हैं, अभी आपको अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। लेकिन अगर इसमें से भी 2 महीने आप वेस्ट कर दिए, इसमें से भी 2 महीने सोचा यार, मतलब ऑलरेडी मान लो 2 महीने आपने वेस्ट कर दिए, फिर 6 महीने बचेंगे ना, तब आपका एफर्ट आपको और ज्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर कर नहीं सकते, आप 6 महीने में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके एफर्ट फिर बढ़ाने आपको पड़ेंगे। अभी अभी आपके पास में 8 महीने हैं, अभी 6 7 8 घंटे भी पढ़ रहे हो। उसके बाद में अगर 6 महीने बचेंगे, स्क्रैच से बता रहा हूं मैं, एकदम जीरो से आप शुरू कर रहे हो, 6 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि 8 9, कभी कभी 10 10 12 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। और लोगों ने पढ़े हैं, टॉपर्स ने पढ़े हैं, मैंने खुद ने पढ़े हैं। 10 10 12 12 घंटे पढ़ता था मैं। अंशिका ने पढ़े हैं, अंशिका ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला है 12 12 घंटे उसने पढ़े हैं। तो एक है ना कि एक तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भाई जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, अगर मान लो कि एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो पूरे फोकस के साथ, आप पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ मान लो कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, और मैं आपको बोलूं कि 4 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा, तो क्या आप 4 घंटे पढ़ोगे? बाकी 4 घंटे आप नहीं पढ़ोगे? मतलब आप पढ़ सकते हो 8 घंटे, अच्छे फोकस के साथ आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको सजेशन दे दिया, या फिर किसी टेलीग्राम के ऊपर या कहीं पे किसी यूट्यूबर ने आपको सजेशन दे दिया कि 4 घंटे इनफ है, तो क्या आप 4 घंटे पढ़ के बाकी 4 घंटे नहीं पढ़ोगे? पुट योर बेस्ट एफर्ट, ये एक सही लाइन बात है होती सर। है। ये एक लाइन होती है, पुट योर बेस्ट एफर्ट, योर बेस्ट एफर्ट, उनके बेस्ट एफर्ट नहीं। हो सकता है उसने 4 घंटे पढ़ के निकाल लिया हो सकता है कि आपसे 4 घंटे पढ़ के ना निकले, हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ के भी निकाल दो, हो सकता है कि आप 8 घंटे पढ़ के निकालो। तो पुट योर बेस्ट एफर्ट। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का सब कुछ एकदम जो मतलब अलग अलग है। ये कितना टाइम वो लेंगे, क्या कितने टाइम के अंदर उनसे क्लियर होगा, ये सब उनका अलग अलग है। आप अपना डिसाइड करो, पुट योर बेस्ट एफर्ट। ओके, चलो प्रियांशु, यू कंटिन्यू। हम्म, सर मतलब एक और डाउट है जो मुझसे लोग पूछते हैं, मुझसे पूछ रहे थे कंटेंट लेंथ के बारे में, मतलब उसके बारे में बता दो। मतलब हाँ हाँ, बताओ बताओ। कंटेंट लेंथ, मतलब वो क्लास के बारे में बोलते थे कि हाँ, लॉन्ग कंटेंट। ये तो एक ही पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ प्रियांशु, मैं सिर्फ ये अपना एक पीओ चीज व्यू है। बता ये रहा एक चीज है जो गो क्लासेस के अगेंस्ट यूज करते हैं। आप कभी भी देख लो, कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी, मतलब एकदम मान लो कि किसी को एकदम नफरत हो रखी है गो क्लासेस से, तो हूँ। वो भी कभी है ना क्वालिटी के बारे में कभी पॉइंट आउट नहीं करेगा। ठीक है, आज तक आपने किसी कोई भी क्रिटिसिज्म आपको नहीं मिलेगा जहां पे वो क्वालिटी कंटेंट या रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन, ठीक है, या फिर रटाना, इस तरह की चीजें गो क्लासेस के अगेंस्ट कभी नहीं जाती। वो एक चीज है कि कोर्स का कंटेंट लंबा है। ओके, तो मैं पहले एक बार प्रियांशु से, प्रियांशु आप जो भी हाँ बोलना चाहते हो ऑनेस्टली हाँ शेयर योर सर, ओपिनियन। मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे भैया के 2018 के टाइम पे कंटेंट की बहुत कमी थी ऑनलाइन। तो अब अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यार 800 900 घंटे का कंटेंट है, तो वो इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा। और आज लोग डाउट ये पूछते हैं कि कंटेंट ज्यादा है, मतलब एक्सक्यूज, ये मेरे को इतना सिली लगता है। मतलब फिर भी मैं ऑनेस्टली सीरियसली आंसर करता हूँ। मेरा भी इस साल ये था कि, मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर
किसी XYZ, किसी ने, एक मिनट, किसी ने 50 आवर्स में कोई सा सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, और सेम वो क्लास ने 100 में करा है, मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इसमें 2000 स्टूडेंट्स हो और मैं इसमें बिलोंग करता हूँ, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क खत्म कर दिया, तो मैं एंड तक सोचूंगा कि ये 50 घंटे एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है 2000 लोगों ने। मैं ये एंड तक सोचूंगा, क्योंकि 50 घंटे एक्स्ट्रा उन्होंने अंताक्षरी तो खेली नहीं होगी, तो 50 घंटे उन्होंने खुद, 50 घंटे उन्होंने ज्यादा अच्छा पढ़ा होगा। तो मतलब मैं इधर बिलोंग करना चाहूंगा, और 1 महीना एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा, बजाय ऐसे कि मैं इधर बिलोंग करूं। मतलब मेरा यही है। मतलब पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि लोग लॉन्ग कंटेंट के लिए रो रहे हैं, मतलब एक्सक्यूज मार रहे हैं। तो मतलब शायद ये, एक्चुअली पता नहीं, इस टाइप से प्रियांशु हो रहा है। प्रियांशु मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्सक्यूजेज है, नॉर्मली जो टॉपर माइंडसेट हम्म। वाले लोग होते हैं वो नहीं मारते इस तरह के एक्सक्यूजेज। ठीक है, आप ये मैंने मतलब टॉपर्स के साथ अभी फेलिसिटेशन के अंदर भी मैंने है ना लोगों से एकदम फेस टू फेस मैंने एकदम पूछा था कि यार मतलब क्योंकि वो सारे टॉपर्स हैं, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार कंटेंट बहुत ज्यादा लंबा है, तो मतलब शुरू करने से पहले आपके डर गए हो, या फिर शुरू करने से पहले आपने सोचा हो कि नहीं नहीं गो क्लासेस नहीं करना, वो करना है, ये करना है। उन्होंने साफ साफ बोला था कि सर हमें तो चाहिए ही था वो, मतलब कि उस तरह का कंटेंट बेसिकली हम ढूंढ रहे थे। सूरज रेड्डी ने भी बोला है, सूरज रेड्डी ने एक्चुअली एक दूसरा कोर्स भी लिया था उन फाइनल ईयर के साथ, या फिर उसके बाद में एक दूसरा कोर्स लिया था, वो सूरज ने पढ़ा भी नहीं। ठीक है, सूरज ने उसके बाद में गो क्लासेस का कोर्स लिया। ठीक है, सूरज ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज बताई है कि उसने जो दूसरा कोर्स लिया था वो उसने पढ़ा भी नहीं, उसको पसंद ही नहीं आया, उसको कोर्स ही ऐसा चाहिए था जिसके अंदर चीजें समझाई गई हों अच्छे से, सारी चीजें प्रूफ के साथ या इस तरह से मतलब अच्छे से कवर हुई हों, जिसके अंदर रटवाना नहीं है, या फिर मतलब जिसके अंदर इस तरह की एक और चीज मैं बताता हूँ। आपने जो बोला ना, मान लो कि किसी कोचिंग का कोर्स 50 घंटे का है और मान लो उसी सब्जेक्ट का गो क्लासेस का कोर्स 100 घंटे का है। आप एक और चीज देखना, गो क्लासेस के अंदर लेक्चर शुरू होने से लेके एंड तक हम कोई फालतू की बात नहीं करते। शुरू होने हम्म। से एंड तक आप एक भी वीडियो देख लेना, कोई भी वीडियो उठा के देख लो। मैं सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आपने गो क्लासेस का एक भी ऐसा लेक्चर देखा है जिसके अंदर शुरू से एंड तक कोई भी फालतू बात करी है? कोई फालतू बात नहीं, कोई फ्री का ज्ञान नहीं दिया है। ठीक है, कुछ प्रमोशन नहीं किया है, हेलो बच्चों करके टाइम वेस्ट नहीं किया है। 2 घंटे के अंदर ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का लेक्चर और उसके अंदर सिर्फ आधे घंटे का कंटेंट पढ़ाया और 1.5 घंटे तक सिर्फ कुछ ना कुछ मतलब फालतू की बातें, फालतू का ज्ञान, फ्री का ज्ञान, इस तरह की चीजें बांटी है। ऐसा नहीं किया। अगर 2 घंटे अगर कंटेंट पढ़ाया तो 2 घंटे का कंटेंट ही पढ़ाया है, उसके अंदर कंटेंट ही मिलेगा। किसी भी मोमेंट पे जाके क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट ही पढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने कहीं से मान लो 50 घंटे का कोई सब्जेक्ट 50 घंटे का है और गो क्लासेस में सेम सब्जेक्ट मान लो 100 घंटे का है, तो गो क्लासेस में आपको 100 घंटे का कंटेंट मिलेगा। उसके अंदर गेट पीवाईक्यू भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगा, वेरिएशंस भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, प्रूफ भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन वो जो 50 घंटे का कंटेंट है ना, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ 10-15 घंटे तो फालतू का फ्री का ज्ञान होता है। आप देख लेना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे 1 घंटे का वीडियो है, उसके अंदर शुरुआत के 10 मिनट कुछ तो फालतू ही चलता रहता है, हाँ। लास्ट के 10 मिनट कुछ फालतू ही चलता रहता है, बीच में भी 10 मिनट फालतू चलाते हैं कुछ ना कुछ, या तो कुछ प्रमोशन या फिर कुछ फ्री का ज्ञान, ये कि मतलब बैठ के बस हर वीडियो के अंदर ज्ञान दिए जा रहे हैं। इतना ज्ञान आ कहाँ से, इतना ज्ञान की जरूरत कहाँ से है, मतलब हर वीडियो के अंदर ज्ञान आ रहा है। ठीक है, तो मतलब उस वजह से क्या है कि वो 1 घंटे का जो कंटेंट है वो एक्चुअली होता है उसके अंदर सिर्फ 30 या 40 मिनट का ही कंटेंट होता है। तो सोच लो कि उनका अगर 50 घंटे का कंटेंट है तो वो 50 घंटे का भी नहीं है, वो एक्चुअली फिर 35 या 40 घंटे का है। वो बच्चे बच्चे करके है ना, वो मतलब कम से कम 10 घंटे तो बच्चे बच्चे करके निकाल देते हैं वो। तो मैं आपको, देख लो, आपको मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं बता रहा हूँ कि, और एक और चीज मैं बता रहा हूँ, बोल देता हूँ चलो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चीज चल रही है इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, वरना नॉर्मली हम ऐसा मतलब गो बोलिएगा, क्लासेस में हम बोलिए। कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, कब ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हम नॉर्मली होती नहीं है, करते भी नहीं है। पिछले 3 साल से मेरे ख्याल से एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बन गया था 2-3 महीने पहले। ठीक है, उसको तो मतलब ऐसा नॉर्मली हम करते नहीं है। मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि बाकी बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टूट के पढ़ रहे हैं गो क्लासेस के ऊपर, कि मतलब हर तरफ वो वीडियो बना रहे हैं, वो पोस्ट लिख रहे हैं, वो हर जगह मतलब हर जगह शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, बेसिकली एक ही चीज बता रहे हैं कि वो कोर्स मत लेना जो इतने घंटे का है, जो बड़ा कोर्स है वो मत लेना। वो नाम नहीं ले रहे गो क्लासेस का, गो क्लासेस का बिना नाम लिए बस वो एक ही चीज स्टूडेंट्स को बोले जा रहे हैं कि वो बड़ा वाला कोर्स मत लेना, इतना बड़ा कोर्स है, अगर वो ले लिया तो क्या करोगे, कैसे करोगे, अगर वो कोर्स ले लिया तो नोट्स कब बनाओगे, पीवाईक्यू कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर
वो जो जितना भी है ना, जितना भी 1100 या 1200 घंटे का जो कोर्स है, उसके अंदर गेट पीवाईक्यू भी सॉल्व है, उसके अंदर प्रैक्टिस सेशंस भी इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस जो होमवर्क है उसका वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉल्यूशन, वो सब काउंटेड है। तो आप जो बोलते हो ना कि अगर गो क्लासेस का कोर्स ले लिया तो अलग से प्रैक्टिस कब करेंगे, अलग से गेट पीवाईक्यू कब करेंगे, वो कब करेंगे, ये कब करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कोर्स के अंदर ये सारी चीजें काउंटेड हैं। ये जो 1100 1200 घंटे का कंटेंट है उसके अंदर गेट पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन काउंटेड है, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन, होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशन, वीकली क्विजेस के वीडियो सॉल्यूशन, ये सब काउंट करके वो 1100 1200 घंटे का है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर आप हम्म। ये सारी चीजें हटा दोगे, तब उसके बाद में हमारा कंटेंट भी उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो ये प्रैक्टिस, जैसे हर वीकली क्यूज के वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं, होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन, इन सबको भी अगर आप मिला दोगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट बनता है। ठीक है, तो इसलिए आराम से अपनी प्रिपरेशन करो। एक्चुअली गेट के टाइम उनको मैसेज करा था, गेट 2024 के टाइम, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी में, मतलब मैं प्रो क्लास की यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, तो मेरे को लगा कि यार मैंने कितना सारा अभी मेरा बचा है पढ़ना। तो होमवर्क के कारण मैंने सब कंप्लीट करना चालू कर रहा था, और मेरा कंपाइलर डिजाइन वीक हो गया था, मेरे को पता चल गया था। तो मैंने सचिन सर को मैसेज करा था लिंक्डइन पे कि सर मेरे को कोर्स दिलवा दो फ्री में दो दो क्लासेस का। तो उन्होंने मैसेज रिप्लाई करा था कि 90% डिस्काउंट मिल जाएगा ऐसा। एक्चुअली ओवरऑल मेरा बस यही बोलने का है कि कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। चाहे 4 महीने 6 महीने कम से कम करो तो सही, कम से कम अपने एफर्ट तो डालो, टाइम वेस्ट मत करो, माइंडसेट अच्छा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। और हाँ, एक जैसे स्टूडेंट ने अभी चैट के अंदर बोला, कॉन्फिडेंस भी हार्ड वर्क से आता है। जब आप कुछ 7 10 दिन लगातार अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, अच्छे से रोजाना पढ़ाई कर रहे हो, एकदम जम के चीजें कवर कर रहे हो, बैक टू बैक कवर कर रहे हो, तो 10 दिन के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बीच बीच में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को जाके पूछोगे कैन आई डू इट, कैन आई डू इट। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट ने अच्छी लाइन लिखी थी चैट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले, किसने लिखी थी कि कॉन्फिडेंस भी हार्ड वर्क से आता है। ठीक है, तो वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम करो, अपना बेस्ट एफर्ट डालो, कम से कम गेट एग्जाम के बाद में आप ये बोल पाओ कि सर मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, वो करो। ठीक है, आ जाएगी रैंक, डोंट वरी। ओके, प्रियांशु, आपको कुछ डाउट या कुछ आपको कुछ लेना है, कुछ एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग? ये बस ये मतलब हाँ, कि अगर कुछ डाउट अभी भी हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे गूगल क्लासेस की मेंबर सर्च करना, उसमें मेरा नाम होगा टॉप पे, तो मेरे को मेंशन करके ग्रुप पे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के, कुछ कुछ रह गए हैं, पर हाँ जनरली मैं आंसर करता हूँ। तो आप कर सकते हो, आपको शर्म भी आ रही हो तो पर्सनली भी कर सकते हो। ये ओके, सो आई थिंक एक स्टूडेंट ने बोला है प्रियांशु, क्योंकि आपकी हाँ। 5 बैकलॉग थी बीटेक में, मेरी 14 बैकलॉग थी, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि बैकलॉग के पीछे भागो, रैंक झक मार के पीछे है। अरे ये मत बैकलॉग करना भाई। बैकलॉग लेके आओ, रैंक झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, इसे अरे ये गलत मतलब गलत कोई इंप्लीकेशन सक्सेस लगा दिया मंत्र नहीं इन्होंने। है ये। हाँ, गलत मतलब निकाल लेते हैं लोग। गलत मतलब निकाल लिया, पता चले कि कल को लोग बैकलॉग पे बैकलॉग लिए जा रहे हैं ताकि रैंक आ जाए कल को। अगर बाई चांस आप में से ऐसा कोई है जिसकी बैकलॉग है या बीटेक के आ अंदर गई पढ़ाई तब नहीं करी है, कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ तब आप, हाँ फील फ्री। ठीक है, ऐसा मैं ओवरऑल एक लाइन के अंदर बोल देता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, आराम से आपकी टॉप रैंक आ सकती है। ठीक है, कुछ 2 3 4 5 साल का टाइम लगेगा, पहले गेट की प्रिपरेशन का टाइम लगेगा, उसके बाद में आईआईटी आईएससी या जहां से भी टॉप कॉलेज से एमटेक का टाइम लगेगा। सिर्फ वो 3 4 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद में आप अपने बैच के सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो। वो जो बीटेक का जो बैच था ना आपका, जिसके अंदर टॉपर्स थे, फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर थे, कुछ लोग थे, एक ग्रुप था, हर कॉलेज में एक यही स्टोरी होती है कि एक ग्रुप था जो टॉप करता रहता था, ऐसा सा कुछ। और मतलब उन्हीं का प्लेसमेंट होता था, वही 4 5 लाख की नौकरी लेके हम्म। पार्टी देते थे। और आप ऐसे आप लेफ्ट आउट फील करते थे कि यार मतलब मेरा नहीं हुआ, ठीक है, इनका हो गया, और आप उन लोगों को पसंद भी नहीं करते थे।
और उसके बाद में सिर्फ 3-4 साल लगेगा, मैं बता रहा हूँ। पहले गेट क्लियर कर लो, फिर एमटेक कर लो किसी टॉप कॉलेज से, उसके बाद में टॉप पैकेज आपका लगेगा। 3-4 साल की मेहनत है। 3-4 साल, उसके तीन अंदर चार मैं साल भी नहीं है एमटेक भी सर इंक्लूड तो। कर रहा हूँ। उसमें हाँ हाँ। एमटेक को भी इंक्लूड कर अच्छा रहा हूँ हाँ। ना मैं। ठीक है, हाँ एमटेक हाँ। भाई, आप एमटेक भी कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, ताकि टॉप प्लेसमेंट लगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 3-4 साल की मेहनत है, इंक्लूडिंग द एमटेक। ठीक है। और उसके बाद में आप अपने उस बैच के, आप अपने बीटेक के बैच के सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो, सारे स्टूडेंट से। ठीक है। तो उसके बाद में करो, लिंक्डइन के ऊपर शो ऑफ करो, पोस्ट डालो, वायरल मजा होगी। आता है सर शो ऑफ करने में तो, मतलब बड़ा गेट मजा का आता है, तो। सच बता हाँ। रहा और हूँ। पहले से एडिशन अटेंड करने में मजा आता अभी क्या है कि क्योंकि मतलब अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं लिंक्डइन के ऊपर मैं बहुत शो ऑफ कर रहा होता। है। लेकिन क्या है कि टीचर बनने के बाद में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी पोस्ट जो है ना वो एकदम ऐसे वो होनी चाहिए, थोड़ी डिसेंट सी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उतना शो ऑफ मैं पब्लिकली कर नहीं पाता। लेकिन हाँ, प्राइवेटली मैं भी करता हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है। सो टेलीग्राम के ऊपर प्रियांशु हैं, गो क्लासेस के प्राइवेट ग्रुप में हो क्या आप प्रियांशु? नहीं सर, प्राइवेट में आप ऐड कर दीजिए। ओके। तो प्राइवेट के अंदर मैं प्रियांशु को ऐड, एल्यूमनी ग्रुप है हमारा एक, उस ओके। एल्यूमनी ग्रुप के अंदर मैं प्रियांशु को ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी जो गो क्लासेस का जो पब्लिक ग्रुप है, डिस्कशन का ग्रुप है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रियांशु हैं। और आप वहां पे उनको टैग करके आप डाउट पूछ सकते हो, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं बैक टू बैक हाँ बाकी इंटर्नशिप के से रिलेटेड। पूछ ठीक है। सकते हो मतलब। हाँ, अभी जैसे फ्री हो किसी के ने आंसर। किसी ने इंटर्नशिप से रिलेटेड डाउट पूछा है, कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस पूछा है। तो आप प्रियांशु को टैग करके मैसेज डाल दो। ओके। ही ऑलरेडी रिप्लाईज, मैंने देखे इनके रिप्लाईज, तो कुछ स्टूडेंट्स जो इनको डाउट पूछते हैं तो ये रिप्लाई करते हैं। सो पब्लिक ग्रुप है या फिर गो क्लासेस का एलुमनी ग्रुप है, उसके ऊपर आप इनको टैग करके डाल दो। ओके। एक स्टूडेंट ने बोला है कि प्लीज अलाउ मी टू हाँ स्पीक। सर, एक बार ओके। दे देते हैं। ओके, चलो मैं एक बार करता हूँ, एक सेकेंड। एक ही बस। ठीक है। बाकी बस। हेलो। यस, यू कैन अनम्यूट। हेलो। हाँ, हेलो ब्रो। यस। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। भैया मैं ये पूछना था कि जैसे अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, मतलब सेकंड ईयर खत्म होने वाला है। एंड मैंने मतलब फैब में कोर्स लिया था, गो क्लासेस का। एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में डीएम और ईएम स्टार्ट किया था शेड्यूल पे कोडिंग। लेकिन मैंने जैसे लीनियर अलजेब्रा में वो लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है ईएम में, एंड डीएम में मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक किया है। और मैंने फंक्शन सेट्स और रिलेशन किया है। लेकिन बाकी का मेरा एग्जाम की वजह से छूट गया। लेकिन मैंने और चीजें कर रखी हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने सुपरनेटिंग, सबनेटिंग एंड हेमिंग कोड करेक्शन कर रखा है। डिजिटल लॉजिक में मैंने मॉड्यूल बन कर रखा है, मतलब के मैप्स वगैरह का, ये सारा। एंड डीबीएमएस में मैंने नॉर्मलाइजेशन तक कर रखा है। तो मैं मतलब ज्यादा पीछे हूँ क्या मतलब शेड्यूल से? ये पूछना था मतलब मैं। अभी थर्ड ईयर में गया है ना। अभी स्टार्ट हो अभी गया भी अभी इतना तो। फोमो क्यों भाई, मतलब इस इतना इतना नहीं लेना यार, मतलब सीरियसली। बहुत टाइम यार अगर। मैं हाँ बोल। मैं थर्ड ईयर में मतलब चाहता हूँ कि मेरे को आगे टेंशन अच्छा ना हो हाँ, कि थर्ड बहुत ईयर बढ़िया में ये बात है, रैंक नहीं आ वो जाए। अच्छी बात है, पर इतना सीरियस होगी कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इतना सीरियस भी मत होना, मतलब ऐसा मान के चलना कि फोर्थ ईयर तो दे ही देंगे, बिगड़ जाए तो अपने यार। इतना सीरियस मत होना कि यार कि कवर हुआ कि नहीं। सर आप क्या बोलना चाहोगे? थर्ड ईयर के अंदर हो, मैं अगर थर्ड ईयर के अंदर अगर गेट की प्रिपरेशन अगर मैंने शुरू कर दी होती तो मतलब मजे ही मजे थे। ठीक है, हाँ सच हाँ। बता रहा हूँ। तो आप तो मतलब बहुत ज्यादा, आप उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे हो जो बेचारे, जिनको कॉलेज के अंदर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो अपने फाइनल ईयर के बाद में गेट की तैयारी करते हैं और टॉप रैंक लाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे प्रियांशु को एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो तो इसने फाइनल ईयर के साथ इसकी रैंक आई 139 रैंक आई। लेकिन मैं वो हूँ जिसको पता भी नहीं था कॉलेज के अंदर कि गेट क्या होता है। मैं मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद में मैं उस सीनियर के पास गया था पूछने के लिए कि यार मतलब कि गेट है क्या। मतलब मेरे को लिटरली गेट का पता भी नहीं था। पहली बात तो कि थर्ड ईयर के अंदर आपने शुरू किया है। और एक और चीज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि 6 महीने
अगर आप अच्छा एफर्ट डालते हो तो भी कंप्लीट हो जाती है आपकी गेट की प्रिपरेशन, तो भी आप टॉप रैंक ला सकते हो। अभी तो 8 महीने बचे हैं और आपने ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीजें कर ली हैं, जैसे आपने बताया प्रोपोजिशनल लॉजिक, लीनियर अलजेब्रा, इस तरह की 2-3 चीजें आपने ऑलरेडी कर ली हैं। तो ऑलरेडी ये चीजें आप कर चुके हो, 8 महीने बचे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस लगे रहो, एफर्ट डालते रहो। अभी डिजिटल लॉजिक शुरू होगा कल से। ठीक है, कल यस से सर। जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अंदर डिजिटल लॉजिक शुरू होने वाला है, कल से शुरू होने वाला है। उसके सिंक सर में रहो। मैंने एक मॉड्यूल कर रखा है डिजिटल लॉजिक का पूरा, जो बढ़िया पहला है, अगर मॉड्यूल है एक पहले मॉड्यूल का। डिजिटल, एक काम करो ना, अगर उस मॉड्यूल को आपने कर रखा है तो जब तक वो मॉड्यूल, अगले कुछ दिन वो मॉड्यूल चलेगा, पहला मॉड्यूल चलेगा, यस सर। उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपना कोई, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, या आप कोई पहले की कोई चीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कर लो। ठीक है, या फिर आपने लीनियर अलजेब्रा कर लिया, आप प्रोबेबिलिटी कर लो। तो कुछ आप पहले का कोई चीज कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही हम डिजिटल लॉजिक के अंदर हम जैसे ही उस मॉड्यूल के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 2 पे जाते हैं, जो कि आपने अभी तक नहीं किया है, वहां से आप यू यस कैन सर। स्टे इन सिंक। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट यस। आप यू कैन स्टे इन सिंक विद द ऑन गोइंग शेड्यूल। उससे उससे एक बेनिफिट बस ये होता है, वैसे चाहो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप, क्योंकि कोर्स पूरा रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप किसी भी ऑर्डर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी एक बेनिफिट जो है वो शेड्यूल को फॉलो करने का ये होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द शेड्यूल। तो आप उनके साथ में डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और दूसरी बात, वीकली क्विजेस भी उसी ऑर्डर में हो रही हैं, तो वो एक थोड़ा यस सा कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। अगर आपने खुद का शेड्यूल बना रखा है तो बस एक कंसिस्टेंसी, या तो आप खुद से लेके आओ कि यार मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, क्योंकि आप जब खुद का शेड्यूल बना लेते हो तो फिर उसके बाद में आपका शेड्यूल फॉलो करने वाला जरूरी नहीं है कि कोई और हो सकता है कि आपने फॉर यस सर। एग्जांपल मान लो कि आपने डीबीएमएस से शुरू कर दिया, हो सकता है कि बाकी लोग डीबीएमएस नहीं कर रहे, तो आपको एक वो मिलता नहीं है, एक मतलब एक ऐसा फील नहीं आता कि बाकी लोग मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको फिर कंसिस्टेंट रहने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, अगर आप डिटरमाइंड हो कि यार कंसिस्टेंटली मेरे को करना ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप किसी भी ऑर्डर के अंदर चीजें कर सकते हो। एनीवे, और ओवरऑल सर। डिजिटल लॉजिक का जैसे मॉड्यूल 2 शुरू होता है तो वहां से आप उसको उसके यस सर। सिंक में रहो, और उसके पैरेलल में आप जो भी पीछे की चीजें हैं वो आप कवर कर सकते हो। और सर एक बात आप और पूछनी थी कि बताओ। जैसे कि मेरा हमारा जो कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में, तो वहाँ पे सर सीजीपी मतलब जो मैक्सिमम होती है ना वही 8 सीजीपी जाती है, और टॉपर की भी मैक्सिमम 8 आती है। तो सर अगर मतलब मेरी एवरेज सर 7 के अप्रोक्स है, तो कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? 60 से ऊपर होनी चाहिए बस, मतलब बस। बस 6 से ऊपर होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैं मतलब खैर, मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब ये तो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है अलग अलग लोगों के ओपिनियन अलग अलग हो। लेकिन जिस तरह की मतलब मेरी जो खुद की लाइफ है, या जिस तरह की मैंने जो बीटेक देखी है, बीटेक के एनवायरनमेंट मैंने जिस तरह का देखा है, तो मुझे तो सच में बीटेक के अंदर मैं तो लोगों को बस एक सजेशन देता हूँ कि कम से कम 6 रखो, 6 या फिर 60। 6 सीजीपीए, यस सर। 60%, अगर अच्छे आपका मस्त परसेंट है, का, मतलब हाँ मस्त है परसेंट का सर। सिस्टम है तो, परसेंट का सिस्टम है तो 60, अगर सीजीपीए का सिस्टम है तो 6। ठीक है, अगर उससे बढ़िया है तो और ही अच्छी बात है। अगर फॉर एग्जांपल परसेंट के मामले में बोलूं, परसेंट के टर्म्स में बोलूं, अगर 65%, 70%, 75% है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन कम से कम 6 रखो, कम से कम इतनी तो रहनी ही हम्म। चाहिए, वरना फिर हाँ आपके तो सात एमटेक के तो अंदर चांसेस कम हो जाते हैं। वरना फिर एक ही कॉलेज बचेगा जिसके अंदर आप एमटेक कर सकते हो, अगर आपकी मान लो कि 5 सीजीपी है, तो उस हम्म। ओवरऑल पूरी आपकी बीटेक की फाइनल जो एक एग्रीगेट जो फाइनल सीजीपी होती है, वो अगर मान लो आपकी 5 है, या फिर आपके 60% से कम है, तो एक ही कॉलेज बचेगा जो आपको एडमिशन दे सकता है, वो है आईआईएससी बैंगलोर, और उसके लिए टॉप 50 में रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मोटिवेशन है ना सर, 5 सीजीपी ले हाँ आओ, हाँ, ऐसी उसके बैंगलोर बाद की में तैयारी। करो। अरे मजा मजा तो यही, मैं तो वो बोल रहा हूँ ना कि अल्टीमेटली देखो, मेहनत कहीं ना कहीं आपको वो जो मेहनत है ना, मेहनत उतनी ही करनी है। देखो मेहनत उतनी करनी है, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं आपने मान लो टाइम वेस्ट कर दिया, तो बस अब उतनी ही मेहनत आपको इतने ड्यूरेशन में करनी है। समझ रहे हो? मेहनत यस मेहनत सर। उतनी ही करनी है, लेकिन अब आपको वो कम ड्यूरेशन में करनी है। सेम चीज जैसे मान लो कि उन्होंने मान लो टाइम वेस्ट कर दिया बीटेक के अंदर, मजे मजे के चक्कर में 60% से कम आ गए, या फिर 5 सीजीपीआई मान लो, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर उनको वो जो मेहनत जो उन्होंने खतरनाक बीटेक में नहीं करी ना, वो उनको फिर गेट के अंदर टॉप आईएएससी के 50 लिए लाने करनी के लिए पड़ेगी। करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक आईआईएससी बैंगलोर ही आपको एडमिशन दे सकता है। तो ये हाँ। प्रियांशु, वो जो यस एक रूल होता है ना फिजिक्स में, या क्या, हाँ, एनर्जी क्या क्या। कंजर्वेशन का, ठीक है, कि बस वो एक एक फॉर्म हम्म। से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने बीटेक में मेहनत कर ली, उनके लिए आगे मेहनत कम हो जाती है। अगर आपने बीटेक के अंदर, अगर आपके
अगर आपने बीटेक में अगर आपने कुछ एकदम टाइम वेस्ट कर दिया, 4 साल टाइम वेस्ट कर दिए, तो आगे आपको उतनी मेहनत आपको बस 1 साल में या 2 साल में करनी पड़ेगी। और यस सीजीपीए का सर। ऐसा है कि मतलब किसी कॉलेज में बहुत इजी रहता है 9 के ऊपर लाना, और जैसे मेरे कॉलेज में बहुत मुश्किल था। तो ये एमटेक में कंपनीज को पता रहता है कि बीटेक की सीजीपीए मैटर नहीं करते, क्योंकि बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, तो इतना जरूरी नहीं है कि 60 ऊपर ही मेंटेन करना है। एमटेक इतना के तो हो जाता है, शायद आना एमटेक था। के एडमिशन के लिए, एमटेक के एडमिशन के लिए ना मेरे ख्याल से आईआईटी दिल्ली है जो 65% से नीचे अलाउ नहीं करता। ठीक है, अच्छा। शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे याद है 2018 के अंदर तो ये रूल था। ठीक है, मेरे क्योंकि मेरी मैं बता देता हूँ, मेरी बीटेक की जो फाइनल जो जो सीजीपीए निकली पूरी बैकलॉग वगैरह क्लियर करने के बाद में जो निकली थी वो थी 60.08। मतलब सोच के देखो कि 60 से सिर्फ 08 ऊपर, 80 नहीं, 08, ये मेरी फाइनल थी 60.08। ठीक है, और बस उस टाइम पता है मेरे को क्या, उस टाइम मेरे को ये था कि हाँ बस हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर इस तरह की कॉलेजेस में मिल जाएंगी। और मुझे उस टाइम पता था कि आईआईटी दिल्ली मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए शायद 65% चाहिए था उस टाइम। अभी अगर सेम रूल अगर अभी भी है तो पता नहीं, हो सकता है कि सेम रूल हो। नॉर्मली इस तरह के रूल्स चेंज होते नहीं है। तो लेकिन बाकी कॉलेजेस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी 6 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एमटेक हम्म। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लेसमेंट में भी नहीं बिल्कुल नहीं आएगी तो। हाँ। वो तो फिर बीटेक का पूछते भी नहीं है इतना, हाँ, मतलब एक बार पूछते कुछ आपने, भी नहीं पूछते थे। हाँ आप हाँ। एमटेक कर रहे हो, आप आईआईटी मद्रास में बैठ के एमटेक कर रहे हो, तो वो आपकी टियर 3 कॉलेज का क्या हाँ, पूछेंगे, क्यों वही पूछेंगे? वही बोल रहा था मैं कि वो पता उन रहता। उनको क्या मतलब, आईआईटी मद्रास में बैठ के बंदा एमटेक कर रहा है और वो पूछ रहे हैं कि तुमने बीटेक में क्या किया था? बीटेक में किया होता तो आईआईटी मद्रास से एमटेक क्यों कर रहा होता? सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई और डाउट? मजा आ रहा है सर, मतलब आपको। मजा तो आता है गप्पे मारने में, अभी स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली अपन गप्पे मार रहे हैं। एक स्टूडेंट ने जैसे पूछा, मैं उनका डाउट आंसर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा कि जब वो लेक्चर्स देख रहे हैं, तब कुछ दिन तक तो एकदम चीजें याद रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो वो चीजें वो उतनी याद नहीं रहती, उतनी डेप्थ में याद नहीं रहती। तो पहली बात तो कि मैं आपको बताता हूँ कि उतनी डेप्थ के अंदर चीजें याद रहनी भी नहीं है। अगर आप आज मुझे बोल दोगे, मैंने डिस्क्रीट मैथ्स या ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन आज अगर आप रैंडमली मुझे बोल दोगे कि सर क्रोमेटिक नंबर और मैचिंग के अंदर क्या रिलेशन है, उसका प्रूफ जल्दी से बताओ, ठीक है, तो भाई तुरंत याद नहीं आने वाला। समझ रहे हो? तो हम्म। है ना, बैठ के हो सकता है कि आधा आधा घंटा निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आधा एक घंटा लेने के बाद में वो प्रूफ मेरे को आएगा, मतलब बेसिकली वो प्रूफ अभी मुझे याद नहीं है, मुझे वो सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उतने डेप्थ, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया कि उतने डेप्थ में चीजें कुछ दिन बाद में याद नहीं रहती, उतने डेप्थ में चीजें याद रहनी भी नहीं। आज मैं प्रियांशु को रेंडमली मैं कोई प्रूफ पूछ लूं कि ये चीज का प्रूफ करो रेंडमली, तो टाइम नहीं यार। लगेगा, एकदम तुरंत नहीं निकलने वाला। ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से सारी चीजें इनको अभी भी याद है। अभी भी अगर इनको, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं, कोई गेट का क्वेश्चन, कोई मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का या कोई डिस्क्रीट मैथ्स का क्वेश्चन दे दूं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो कि मतलब सौरभ, तो चीजें जिस टाइम आप पढ़ रहे हो या जिस टाइम हम पढ़ा रहे हैं आपको, उस टाइम तो एकदम होता है ना कि उस टाइम तो हर प्रूफ आप जैसे भी पूछोगे तुरंत हमारे मुंह से निकलेगा, ये प्रूफ है, ये सब कुछ है। लेकिन कुछ टाइम बाद में अगर आप उसके टच में नहीं हो, तो उस डेप्थ की चीज, उस वो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग से निकल चुका है, लेकिन वो टाइम लेगा। ठीक है, उसको आधा एक घंटा रिकॉल करने में टाइम लगता है। आप गूगल के ऊपर देख लो, अगर आप किसी पेज यूट्यूब को आप रोजाना खोल रहे हो, तब तो यूट्यूब खुलने में टाइम नहीं लगाता। लेकिन आप कोई ऐसी वेबसाइट खोल रहे हो जिसको दुनिया में कोई खोल ही नहीं रहा, या फिर आप बहुत टाइम बाद में खोल रहे हो, तो वो लोड होने में टाइम लगाती है, वो आपकी कैश मेमोरी में नहीं है। तो सेम चीज कि, तो इसलिए टेंशन मत लो। और एक और चीज, कोई भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में गेट और फ्लो वेबसाइट पे जाके हर दिन का उसमें 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कर लो। जैसे आपने डिस्क्रीट मैथ्स खत्म किया, उसके बाद में हर दिन क्या करो, हर दिन 3 क्वेश्चन ऐसे रट लो कि मैं फिक्स बना दो कि मेरे को 3 क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथ्स के रोजाना सोल्व करना है। ठीक है, और रेंडमली सोल्व कर लो। ठीक है, कुछ भी गेट और फ्लो वेबसाइट पे गए, डिस्क्रीट मैथ्स का जो बटन है उसके ऊपर दबाया, और ऐसे ही कोई भी 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप रोजाना डिस्क्रीट मैथ्स के 3-3 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको
वो आप भूलोगे नहीं। 1 महीने 2 महीने बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो भूल गया डिस्क्रीट मैथ्स, आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि आप रोजाना 3 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो डिस्क्रीट मैथ्स के। आज आपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कल आप सेट थ्योरी के करोगे, परसों आप ग्राफ थ्योरी के करोगे, तो आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूल गए चीजें। ऐसा लगेगा ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये एक चीज है, जैसे मैंने बोला ना, आप यूट्यूब को अगर रोजाना खोल रहे हो, दिन में 10 बार खोल रहे हो, तो वो बहुत जल्दी फास्ट तरीके से खुलेगी, क्योंकि वो आपकी कैश मेमोरी के अंदर है। वैसे अगर आप रोजाना अगर 3 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अगर उसके 3 क्वेश्चन भी अगर आप रोजाना सोल्व कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंटली 3 क्वेश्चन सोल्व करने में 5 या 10 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो दिन का 10 मिनट अगर आप उस सब्जेक्ट को दे रहे हो जो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको वो सब्जेक्ट आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और आपको रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। अगर आप कल को 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका रिवीजन करते हो, तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में कर सकते हो। कोई प्रयास हो आपकी तरफ से, कोई सजेशन? हाँ सर, वही कि डेप्थ में आपको उसी टाइम याद रहेगा, फिर बाद में आपको लगेगा कि यार इतने अच्छे से मेरे को पता नहीं है अब जितना मैंने पढ़ा था उस टाइम। तो वो तो होगा ही, पर इससे उससे डरने की बात नहीं है, सबके साथ होता है तो, जैसा वो आपने तो बोला। वो तो प्रोफेसर्स तो के साथ भी होगा। अगर हाँ आज हाँ, मान वो लो तो कि होगा कोई प्रोफेसर, जैसे होता है ना कि आईआईटी ही। आईएससी के अंदर, इनमें प्रोफेसर क्या करते हैं कि एक कोर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक साल में वो कॉम्बिनेटोरिक्स का मान लो कोर्स ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो वो एक साल में एक बार लेते हैं। ठीक है, अगले साल जब फिर से लेंगे, अब मान लो जिस टाइम वो कॉम्बिनेटोरिक्स का कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उस टाइम तो उस टाइम आप उनसे जो भी पूछोगे वो फटक वो तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर मान लो उनको भी 6 महीने बीत गए, 6 महीने से उन्होंने कॉम्बिनेटोरिक्स का कोर्स नहीं पढ़ाया है, और आप रेंडमली जाके कुछ रेंडम सा कुछ प्रूफ पूछ लोगे उनसे, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही आपको बताने वाले हैं। उनको 5-10 मिनट लगेगी रिकॉल करने में। अब वो इतने बड़े हैं कि वो उनको 5-10 मिनट लगेगी, मुझे हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लगे। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है, थोड़ा रिकॉल करने में हो सकता है कि टाइम लगता है। तो एकदम ऐसे नहीं है कि एकदम वो चीज और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चीजें भूल चुके हो, ऐसा नहीं है कि आपकी ऐसा, कॉन्सेप्ट हाँ। आप भूल चुके हो या आपकी कोई गलती है, नहीं, ये तो नेचुरल है। ओके, तो आई थिंक अभी करते हैं फिर फिनिश। हम्म, हाँ ठीक है सर, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं एक्टिव एक ही रहता हूँ स्टूडेंट ने मतलब बहुत कभी। एक स्टूडेंट ने हम्म, हाथ मतलब किया हुआ है रेज हैंड। एक बार इनसे पूछ लेते हैं। हेलो, संदीपन चक्रवर्ती, यू कैन Yes, स्पीक। sir. Yeah, hi. Actually, I am a working professional, sir. So, मैं आईटी में ही काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो बीटेक है ना, वो इस स्ट्रीम में नहीं है। और मतलब कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ मैं। और मेरा अ, जो सीजीपीए है वो एक्चुअली 6 से कम है। तो ये दोनों चीज एक्चुअली थोड़ा मेरे को खटक रहा था। बट मैंने ऐसी कोर्स ले लिया है, प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया मैंने। लेकिन मेरे को लग रहा था कि मतलब ये डाउट मेरे को शुरू से खटक रहा था कि कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पहले मैंने जब देखा था इतने साल इसीलिए मैं वेट करके रखा था। फिर इस साल मैंने अचानक से देखा कि आईएएस में कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा। बाकी सारे आईआईटीज में मैंने देखा था कि ये क्राइटेरिया है, इसीलिए इतने साल गेट मतलब मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया इसीलिए। तो ये चीज पता नहीं था मुझे। तो बाकी कोई भी कॉलेज में ऐसा नहीं है क्या कि गेट का मतलब एमटेक का क्राइटेरिया 60% से कम हो ऐसा? एक बार प्राइवेटली सर बात करते हैं, ओके। रिसर्च करना पड़ेगा मतलब, है ना। एक आप संदीपन, आप एक काम करना, आप प्रियांशु को मैसेज करो टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, हम्म, ओके। ओके। प्रियांशु को आप गो क्लासेस का जो मैं नंबर दे पब्लिक दूंगा। पब्लिक ग्रुप है ना, जो टेलीग्राम के ऊपर गो क्लासेस का पब्लिक डिस्कशन ग्रुप है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रियांशु हैं। आज मैं इनको प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा, एलुमनी ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इनको ओके। टेलीग्राम के ओके। ऊपर पर्सनली आप मैसेज करके आप ये चीज़ पूछ सकते हो। ओके, थोड़ा देखना पड़ेगा, ब्रोशर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है, मोड मोड ऑफ एडमिशन भी चेंज होता रहता है, तो वो एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। सो आई थिंक प्रियांशु, यू कैन लाइक, हम्म, ओके, सो संदीपन, योर डाउट इट विल बी आंसर्ड। ओके, ओके। टेलीग्राम के ओके। ऊपर आप प्रियांशु को मैसेज कर लेना, हाँ। प्रियांशु आपको बता देंगे। तो ये यही वाला आइडिया क्या, प्रियांशु 297 ये है या पता नहीं कौन सा है? मैं ए टैग आई कर तो दूंगा। लिखा होगा मतलब। हाँ, लिखा हुआ है, मतलब सामने AIR2 लिखा हुआ है। ओ अच्छा अच्छा। ओके, ओके। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली।
गो प्राइवेट क्लासेस प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप यही वाला है ना? हाँ गो हाँ क्लास। गूगल डिस्कशन गेट्स ऐसी। अच्छा, ओके। तो लेकिन अच्छा, ये चीज तो ठीक है, लेकिन आईआईएससी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ना? आईआईएससी के अंदर भी बात देखो, मुझे तो मतलब मेरे टाइम का याद है कि उस टाइम 2018 के अंदर जब मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम कोई क्राइटेरिया नहीं था। अगर आपके 60 से कम है तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेकंड बेसिकली मतलब सेकंड ग्रेड बोलते हैं, मतलब 50 से सॉरी 60 से कम है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया ही नहीं था उनका कि आपकी मतलब बीटेक की सीजीपीए या बीटेक की परसेंटेज नहीं देखते वो। ठीक है, तो अच्छा। हाँ, तो फिर भी संदीपन ये एक ऐसी चीज है जिसको आप या तो प्रियांशु को टेलीग्राम के ऊपर पूछ लो, या फिर 2 मिनट आपको लगेगा, आप बस उनका ब्रोशर पढ़ो एक बार। ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने जैसे देखा एक्चुअली आईआईएससी हाँ, केस में, मैंने देखा नहीं कि क्राइटेरिया है करके, मतलब परसेंटेज का क्राइटेरिया आईआईटी वगैरह के सारे में क्राइटेरिया में देखा मैंने। आईएससी के ब्रोशर के अंदर शायद सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है कि सेकंड डिवीजन अलाउड है वहाँ, मतलब आप देखना उसको। थोड़ा अच्छा। ब्रोशर के अंदर मिलती हैं ये डिटेल्स। जैसे मतलब आईआईटी तो दिल्ली के ब्रोशर में आपको हम्म, मिलेगा कि उनका सीजीपी क्राइटेरिया कितना है, मेरा ये सारी सीजीपीए चीजें। एक्चुअली 5.03 है, तो उस हिसाब से सेकंड डिवीजन तो बनता है शायद। हाँ, तो आप वही। सेकंड डिवीजन हो और आपको आईएससी के अंदर तो अलाउड आप पक्का हो, और बाकी आईआईटीज का आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, मतलब आप भी हम्म, ब्रोशर देखो। अगर आपको नहीं मिल रहा, मान लो आपने ब्रोशर चेक किया और किसी आपको नहीं मिल रहा, आइडिया नहीं लग रहा, तो फिर आप प्रियांशु को पूछ सकते हो, या अपन फिर साथ एक में करते हैं ये सब चीज, हम्म साथ में रिसर्च करते हैं। अच्छा, चिंता मत ठीक कर, है। हाँ। ओके, ठीक ठीक है। है। बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो प्रियांशु को पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर पूछ लो, इनको टैग करके पूछ लो। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू।